Yes, it started. Yeah. नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से टुडे वी आर गोइंग टू होल्ड दिस सेशन विच इज अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सब्जेक्ट्स अराउंड इट. So we welcome you all for this session. Thank you so very much for joining. And in the beginning, I would like to tell you that Mr. Dev Rakhecha from Dev FinServ, he has joined us. And we have Mr. Himanshu Sahu, General Secretary Viviva. We have Mr. Dinesh Kumar Gujjar, Vice President Viviva. We have Mr. G. Vamshi, and I think Raina ji, Surendra Raina ji has also joined us. They are from Viviva team, and we have Surya Jyoti Madam, Treasurer Viviva, and she is taking care of technical aspect of this meeting. So I welcome all the team members of Viviva and all the participants, and I welcome our guest, Mr. Dev Rakecha. So in the beginning, I would like to request Mr. Himanshu Sahu to say a couple of words about this session and Viviva's activities. Sir, please. Yeah, am I audible, friends? Yes, you are audible. Yeah, good morning to all my respected team members, our respected guest and speaker, the prominent specialized Mr. Dev Rakheja from Rakheja FinServ. He has a vast experience in this field. He manages hundreds and hundreds crores of funds under his company's like specialized for person with disabilities also, since he himself is a visually impaired, if I'm not mistaken. Then my like lot of appreciation for such a big numbers of almost it is full. So we also did not promulgate it so much because we knew that there is a number constraint. We can accommodate only 100 people, but it is almost full now. So this session, before saying about this, friends, you must be aware about the Viviva's activity. We had organized ourselves as an association in year 2014. Since then, we have been taking so many like events along with our day-to-day activities for the betterment of our visually impaired bank employees community. Simultaneously, for knowledge and other purposes, we have been taking different sessions, and especially it was on the peak during our COVID period, because that time people were shut in within inside their houses, and also that time also we did a lot of webinars. Now we have restarted this series so that we can create awareness about untouched aspects where people are not having accurate information and all. And we believe this will go in a long way. Here, a specialized subject today is of course financial management. We all are most of we are bankers, but the thing is keep only becoming being a bank employee doesn't mean that we are very much aware about our finances, where to spend, how much to spend, like what proportion of our income should go in the long term investment, in the short term investment. Then it comes about insurances, because these days health and life and all have become very hazardous. So all these aspects will be touched by our respected guests, and we believe that this session will be a very helpful uh, experience for you to be implemented in your financial life. So with this, thank you to all, and we request Mohammed Parvez, the coordinator and our joint secretary of BBWA, to proceed further. Thank you. Thank you, Himanshu sir, for your uh, precious words. Now, I would like to request Mr. Dinesh Kumar Gujjar to say a couple of things. So after that, we will officially start the session. Dinesh sir, being the Vice President of Viviva, he will say a few things. Sir? Dinesh sir, please unmute yourself.
I think he is facing some No, technical issue. it is unmuted. Okay, Very sir. good morning, my dear colleagues. We would like to thank our team members for arranging such a good show and the participants who are really willing to seek benefit out of it. I welcome our chief guest, main speaker of this program, and today I think I will not spare more time here. I would like to listen to him, and the people are waiting. All the best. Thank you so very much, sir. Thank you very much. Now, I would like to request Mr. Dev Rakhecha, the founder of Rakhecha FinServes. I would like to tell you, friends, that he has done masters from IIM Raipur, and he has got experience in finance market over 10 years. And as fund manager firm, they are taking care of more than 150 crores. So he has got a good exposure, good experience. And now I request Mr. Dev Rakeja, sir, please come and please throw light on financial management for our participants. And sir, we have participants from all parts of country. So we will please try to keep your session in a bilingual. Sir, please welcome. Hi, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Thank you so much for that, for those kind words. It means a lot. And to just add on to the introduction that you already shared about me, first of all, thank you so much, everyone. I was not honestly not expecting such a huge turnout on a Sunday morning, especially you might have just left the session and done something like you could have relaxed and all, but you took this time and opportunity to maybe enhance your skills, enhance your knowledge, and to understand what matters most to you yourself, apart from anyone else. So thank you so much, everyone. So just to add to what has already been said about what we are doing at Rakecha FinServe. So we started about 10 years back with a vision to make individuals, empower individuals to be financially independent. And uh, having been seen that a lot of mistakes were made by individuals in terms of managing mistakes, be it behavioral mistakes, be it some dealt with lack of knowledge, but put together just to manage things in a better way. But having said that, here obviously you people are all dealing with money on a daily basis. So I'm talking to bank employees. So आप लोग से ज्यादा पैसे मैनेज करना कौन समझ सकता है, क्योंकि दिन रात आप पैसों के बीच में हैं। और आज हम पैसे की ही बात करने वाले हैं। तो आप पूरे वीक आपने बैंक में काम किया है और आज भी आपको पैसों की ही बातें करनी है, पैसों की बातें सुननी है, और जो भी क्वेश्चंस है आपको पूछनी है। सो आई विल ट्राई टू कीप इट बाइलिंगुअल सो दैट each and every participant each and every participant understands what I'm trying to say. And I'll keep it as simple as possible so that there's no problem in understanding what I'm trying to deliver. मैं बहुत ही आसान आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है और हमें क्या मिस्टेक्स हम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं जैसे बैंक एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पैसे के बारे में हमें पता है। वी अंडरस्टैंड, वी हैव ऑल द बैंकिंग नॉलेज, इवन मोर देन मी, ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग कि बैंकिंग में क्या टर्म्स कैसे बैंकिंग करते हैं। और बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड वी अंडरस्टैंड इवन मोर, क्योंकि बहुत सारे निटिग्रिटीज है जो बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड कैसे थंब इम्प्रेशन के साथ केवाईसी करते हैं, कैसे और चीजें वर्कआउट होती है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इससे बेटर मैं प्रैक्टिकल, एक्शनेबल और रिलेटेबल एस्पेक्ट्स में बात करूंगा जो आपको डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल प्लान में हेल्प कर सकती है। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग अर्निंग मनी? नो, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अर्निंग मनी। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स जो पैसे आप ऑलरेडी कमा चुके हैं या कमा रहे हैं, उसको कैसे सही जगह निवेश करके या सही से मैनेज करके, कैसे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करके, कम रिस्क लेकर, डाइवर्सिफिकेशन के साथ कैसे अपने एसेट्स को आगे बढ़ाना है, अपना वेल्थ क्रिएट करना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। तो नाउ लेट मी बिगिन। मतलब मैंने फाउंडेशन, आई ऑलरेडी लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट।
अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ रोड मैप। कि आज आपको मान लो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, आपको पहले तो अपने आप पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ पे है। आपको मान लो दूसरे सिटी में आपको ट्रैवल करना है, आपको मे बी बैंगलोर जाना है या चेन्नई जाना है। तो आप कैसे, आपके पास पहले आपको ये डिसाइड करना है आपको जाना कहाँ है। वंस दैट थिंग इज सॉर्टेड, फिर आपको बेसिकली प्लान करना है। आपके पास जैसे ऑप्शंस होते हैं, आप या तो फ्लाइट में जा सकते हैं, आप ट्रेन में जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं। आप बेसिकली कॉस्ट और टाइम इनकर्ड के बेसिस में सारे अपने इवैल्यूएशन कंसिडर करके फिर आप डिसाइड करते हो कि मैं यहाँ से या तो फ्लाइट में जाऊंगा या तो मैं ट्रेन में जाऊंगा। तो अब ये अब डिसाइड कर लिया, फिर आप बाकी चीजें देखती हैं कि कौन सा फ्लाइट आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, टाइम भी सही मैच हो रहा है, सारे चीज। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे है। तो अब बिहेवियरल एस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम एज बैंक एम्प्लॉयज, मतलब बाकी लोगों से मैं बात करता हूँ तो अलग है, यहाँ मैं बैंक एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ तो अलग बात है। बिकॉज एज बैंक एम्प्लॉयज वी माइट थिंक दैट वी हैव मच मोर नॉलेज, विच इज ट्रू, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। यू हैव मच मोर नॉलेज एज कंपेयर टू से रेगुलर इंडिविजुअल जो बैंकिंग भी नहीं समझता और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ABCD भी नहीं जानता। उससे तो बेटर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज बीइंग बैंक एम्प्लॉयज आपको है। बट वी अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर, राइट? क्या मिस्टेक्स हम Yes. कर जाते हैं, कैसे हम उससे, और एक मतलब सम मिस्टेक्स आर रिपेयरेबल या रिप्लेसेबल, जहां से हम बाहर निकल सकते हैं। सम मिस्टेक्स आर नॉट इवन, मतलब एक बार मिस्टेक कर ली है उसके बाद वहां से निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो so what I would say, matlab, on basis on my experience of last 10-11 years that I've been in this financial well-being, financial planning industry, wealth management industry, कि knowledge is just 20%, behavior is 80%. मैं ये दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली आर्ग्यूएबल। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आपका विचार या योर थिंकिंग माइट differ from what I'm saying, but according to my experience, I learned that knowledge is just 20%, behavior is 80%. और हम क्या करते हैं, we just either think कि नॉलेज के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, नॉलेज बहुत गेन करना होगा, या वी थिंक दैट वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज, वी कांट गो रॉन्ग, वट एवर वी डिसाइड, वट एवर वी डू, वी आर 100% राइट। बट वाई बिहेवियर इज 80%? आई वुड टेल यू बिकॉज सी, हम पहले तो हमें समझना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी। नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब ये है कि हम समझ लें कि इन्वेस्टमेंट्स क्या, स्टॉक्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होता है, ये सब नॉलेज है, राइट? बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब तो हम सोच तो लिए हैं, बट फिर भी हम, एज आई हैव सीन द मोस्ट नॉलेजेबल person also deliver the craziest mistakes in when it comes to finance, राइट? वो आप सोचोगे नहीं कभी कि इतना नॉलेज है, इतना स्किल्स है इसके पास, फिर भी यार ये यहाँ कैसे है, इसको तो ही और शी शुड नॉट बी हियर। सो जस्ट बिकॉज कि आप, एक तो मिस्टेक्स क्या करते हैं, इस पे हम आते हैं कि क्या क्या हम मिस्टेक्स करते हैं। पहला पहला मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हमारा डिसीजन, मतलब व्हेन इफ वी हैव पिक्ड अप अ स्टॉक, दैट स्टॉक इज डेफिनेटली गोइंग अप। दूसरा दूसरा मिस्टेक हम करते हैं, वी लिसन टू व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, वी लिसन टू फ्रेंड्स, वी फॉलो टिप्स, राइट? ये दीज मिस्टेक्स आर डेफिनेटली टू बी अवॉइडेड। आप, अगर आप सोच रहे हो कि अ पर्सन यू नो हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज और वो आपको टिप देगा और वो स्टॉक आपको 100 रुपीज का स्टॉक 1000 हो जाएगा, हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट नॉलेज कांट टेक यू फ्रॉम हियर टू देयर, बट those are very risky steps, because without understanding, मतलब अपने से कुछ समझे बिना कोई डिसीजन लेना बहुत गलत है। बिकॉज वो तो जो आपको रेकमेंड कर रहा है वो तो कब बेच रहा है कब खरीद रहा है आपको नहीं पता, वो तो निकल जाएगा। बट व्हाट विल हैपन, यू विल गेट इनटू ट्रबल इफ यू फॉलो टिप्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये खाली, और बीट न्यूज। न्यूज क्या करते, न्यूज ऑल्सो काइंड ऑफ shifts their narrative like a pendulum,
आपको फियर से ग्रीड के बीच में पेंडुलम की तरह शिफ्ट कराता रहता है। एक एक दिन आपको बोलेंगे कि ब्लड बाथ एवरीवेयर, सो डोंट इन्वेस्ट इन मार्केट्स, डोंट इन्वेस्ट हियर देयर, जस्ट पुट एवरीथिंग इन अ सेफ प्लेस। और एक दिन आपको ऐसा दिखाएंगे कि एवरीथिंग इज रोजी, मतलब इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग यू आर द मोस्ट फुलिश पर्सन, ऐसे आपको लगेगा। तो वो पेंडुलम की तरह शिफ्ट करता रहेगा, तो आपको शिफ्ट नहीं होना है। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत स्टैटिक रहना चाहिए, बहुत सर्टन होना चाहिए। योर फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी कंसिस्टेंट विथ योर ओन फाइनेंशियल गोल्स rather देन बीइंग कंसिस्टेंट विद द नॉइज अराउंड। अगर आप नॉइज के साथ घूमोगे तो आप कभी एक दिन एक बात करोगे। मैं बहुत सारे अपने ही वीआई कम्युनिटी में भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो जहाँ पे लोग न्यूज आर्टिकल्स डालते हैं, राइट। लोग न्यूज आर्टिकल्स पोस्ट करते रहते हैं रैंडमली। इधर एक दिन इधर यूएस में टैरिफ इम्पोज, यूएस ने टैरिफ इम्पोज कर दिया इंडिया पे। एक दिन ईरान ईरान यूएस इसराइल का वॉर हो गया। एक दिन एवरीथिंग इज गुड, वो हो गया, पीस टॉक्स हो गए, सीज फायर हो गया। बट ये क्या है? ये सब कुछ नहीं है। दीज आर ऑल नॉइस which are not important for you for your long term financial goals. अब ये तो बस कॉन्टेक्स्ट मैंने थोड़ा सा डाला है कि कैसे कैसे क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है ना, ये जब आप फियर और ग्रीड के बीच में एक व्हेन यू शिफ्ट लाइक अ पेंडुलम, तो उसमें क्या होता है, आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हो। यू सेल व्हेन यू शुड बाय एंड यू बाय व्हेन यू शुड सेल। क्योंकि क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पैनिक, जब मैक्सिमम पैनिक क्रिएट होता है, उस समय मैक्सिमम नेगेटिविटी होते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन इफ यू इन्वेस्ट यू मेक द मैक्सिमम गेन्स। पर उस समय क्या होता है, हम डर के बेच देते हैं सब, वी सेल एवरीथिंग एट दैट टाइम। और दूसरी तरफ व्हेन एवरीथिंग सीम्स रोजी, आज से 2 साल पहले की मैं बात करूं, 2023 2024, इंडिया वाज द मार्केट टू बी इन। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया। आज कहाँ गए वो लोग? बिकॉज क्या है कि 2024 में ऐसा हो रहा था कि ग्लोबली पहले तो ऐसे बोलते थे कि यूएस के, इफ यूएस स्नीज, यूएस के मार्केट्स तो हल्का सा भी वहां के लोग स्नीज भी कर देना, यहाँ का मार्केट्स गिर जाते हैं, पहले ऐसे बोलते थे। पर 2023-24 में क्या हुआ, यूएस का मार्केट्स अप डाउन होते रहा, इंडियन मार्केट्स वर कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। अब क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड इन 2025? जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इन 2025? सारे मार्केट्स अच्छे किए इंडिया को छोड़ के। कैन यू बिलीव इट? कैन यू इमेजिन कैसे नैरेटिव चेंज हुआ और कैसे चीजें चेंज हुई? तो आप अगर ये सोचते, ये न्यूज देखा होता आपने 2024 में कि वर्ल्ड कहीं भी जाए इंडिया तो बढ़ेगा ही, तो आप सारा पैसा इक्विटी में डाल देते, इंडियन इक्विटीज में। और आप सोचते कि भाई अब तो मेरे को हर साल 25%, 25%, 30% रिटर्न मिलना है इक्विटी मार्केट से। एंड यू हैव सीन द रिटर्न्स इन द लास्ट 1 or 2 years। आई डोंट हैव टू मेंशन दोज थिंग्स, क्योंकि आप खुद बैंक में हो, भले ही आप ना भी इन्वेस्ट करो, तो आप इन न्यूज इन नंबर से दूर नहीं हो। तो अभी क्या होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन आपने सही से किया होता अगर, राइट। आई डोंट मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, आई डोंट मीन ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आपने डाइवर्सिफिकेशन एक अपने एंड में किया होता। अब मैं आगे भी बताऊंगी कि ग्लोबल एसेट्स में कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एज रिटेल इंडिविजुअल्स, जहाँ पे आप मान लो अगर आपको 10-20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जो भी डालना है डाइवर्सिफाई करने के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। बट अगर आपने थोड़ा पैसा, 15-20% ही पैसा, 15-20% ऑफ योर हार्ड अर्नड मनी, इफ यू वुड हैव केप्ट इन, मतलब जो भी अपना इक्विटी एलोकेशन, इफ यू हैड केप्ट इन इंटरनेशनल एसेट्स, बीट द यूएस मार्केट, बीट चाइना, बीट कोरिया, बीट ताइवान, यूरोप, जापान, कहीं भी, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कहीं भी, आप सिलेक्टिव होते तो और ज्यादा, बट कहीं भी आपने डाला होता तो यू वुड हैव मेड सम गेन्स। बट सारा पैसा इंडिया में होने के कारण क्या है कि यू कुडंट कैपिटलाइज ऑन दिन गेन। और एक चीज क्या हुआ साथ में, कमोडिटीज, पीपल हैड कंप्लीटली रूल्ड आउट कमोडिटीज की, गोल्ड सिल्वर में क्या इन्वेस्ट करना है, हमें तो सब मार्केट में डालना है। मैं खुद उसके फेवर में हूँ। आई एम अ पर्सन लाइक दैट, बट आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन डाइवर्सिफिकेशन। कि आप इक्विटी में पैसा डाल भी रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। भले ही वो, मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आज, आई एम नॉट गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ थ्योरी। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, कैसे होता है, कैसे नैरेटिव बिल्ड होता है और कैसे हम मिस्टेक्स करते हैं। मोहम्मद, am I making sense, or do I need to change course and speak more about theoretical aspects? ठीक है, आई थिंक Continue, please. Continue, हाँ, please.
ओके, थैंक यू सो मच। तो इसमें हाँ क्या हो रहा है कि अब मतलब अगर आपने 10-20% Dev, sorry, का actually, na, my phone was on mute, so it took some time. नो Yes, प्रॉब्लम। you are actually making sense, and you are going in the right direction, I suppose. Yeah. ओके ओके, Yes, please continue. थैंक यू। Hmm. तो अभी क्या हो रहा है कि अब डाइवर्सिफिकेशन की बात मैंने की, क्यों जरूरी है। इन 2025 वी आल्सो सॉ अनदर थिंग, राइट? गोल्ड सिल्वर डूइंग वेरी वेल, commodities as a asset class doing very well, not only gold silver, आप ब्रॉन्ज ले लो, कॉपर ले लो, सारे सारे कमोडिटीज ने बहुत अच्छा किया। तो अगर हमारा पैसा थोड़ा यहाँ भी होता, आई एम नॉट सेइंग, सी यू कांट टाइम द मार्केट, बीट इवन आई कांट, मतलब मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ, दिन रात ये करता हूँ, सुबह से रात तक यही करता हूँ, मार्केट्स की फॉलो करता हूँ, मार्केट्स की बातें करता हूँ। मैं भी बिल्कुल, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं टाइम नहीं कर सकता मार्केट, बट मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। मेरा थोड़ा थोड़ा एसेट क्लास, थोड़ा थोड़ा पैसा हर हर एसेट क्लास में रहता है, बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, सर्टेन इंडिकेटर्स। मैं अपने एसेट एलोकेशन को थोड़ा चेंज करता हूँ, बट माई कोर एसेट एलोकेशन रिमेन्स सेम। तो अभी मैं एसेट एलोकेशन की भी बात करूंगा कि कैसे हम एसेट एलोकेशन अपना करें और कैसे अलग एज ब्रैकेट वाले लोगों को अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए। दैट विल गेट टू इन सम टाइम। So now let me come to the basics of financial planning. एकदम बेसिक्स की बात करेंगे, सो दैट इट इज रिलेटेबल एंड प्रैक्टिकल, प्लस मोस्ट ऑफ यू कैन टेक एक्शन ऑन इट इमीडिएटली। क्योंकि एक्शन हम नहीं ले, हमें सिर्फ ज्ञान लेके नहीं जाना है। ज्ञान लेके चल, ज्ञान तो आप क्या है, इफ यू ओपन यूट्यूब यू विल हैव टेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू कैन जस्ट सी वॉट एवर, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी बहुत कंटेंट मिल जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि यहाँ से आप जब सेशन के बाद आप निकले और वापस से अपनी लाइफ में जाए, तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक चीज यहाँ से लेके जाए, ऐसा चीज जो आप अपने लाइफ में इसको फॉलो करें, तब मैं मानूंगा कि मेरा सेशन एक्चुअली जो मैंने किया है दैट इज वर्थ वाइल, दैट इज एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन 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 योर लाइफ। तो अभी क्या है कि कैसे करना है इसको, इस पे आते हैं। क्या हुआ है, मैंने थोड़ा पास्ट का आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कैसे करना है। तो हमें तीन चीजें करनी है। एक तो इमरजेंसी फंड, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू आई मीन बाय इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड का मतलब है आपका ये पैसा, जब अगर मान लो कोई इमरजेंसी आता है, बीट हेल्थ इमरजेंसी, बीट एनी अदर इमरजेंसी, जहाँ पे अ, आपको पैसे की नीड हो इन द शॉर्ट टर्म, तो उसको उसको फुलफिल करना। तो बीइंग बैंक एम्प्लॉइज, नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि आज इतना वर्ल्ड अनसर्टन है, यू यू ऑल ऑफ यू मस्ट मस्ट बी एक्चुअली थैंकिंग योर लक, कि आप बहुत लकी हो कि आप बैंक में आज आप जॉब कर रहे हो, आपको बैंक में जॉब मिला है। बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड, बी इट ड्यू टू एआई, बी इट ड्यू टू अभी जो सिचुएशन है, ये स्ट्रक्चरल, एआई भी स्ट्रक्चरल चेंज लेके आएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल विल नॉट गेट जॉब्स, बट जॉब करने का तरीका डेफिनेटली डिफरेंट होगा आगे वाला टाइम में। प्राइवेट सेक्टर में उन लोग को रेगुलर बेसिस में बहुत अपस्किल और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। बीइंग बैंक एम्प्लॉयज यू आर सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ योर जॉब्स। सो नॉर्मली मैं पहले बोलता था नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए कि आप अपने सैलरी का 4 to 6 मंथ्स, जितना भी आपका मंथली सैलरी है उसका 4 to 6 मंथ्स का सैलरी आप इमरजेंसी फंड में रखो। और अभी के टाइम में मैं एटलीस्ट उसको बोल रहा हूँ कि आप 8 टाइम्स कर दो उसको, सैलरी का 8 गुना आप इमरजेंसी फंड में रखो। बट इन योर केस, वेयर यू हैव दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बीइंग ऑल ऑफ यू बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मोस्टली, अज्यूमिंग कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब आप पीएसयू बैंक्स में काम करते हैं। अगर नहीं भी करते तो कंपेयर टू अदर सेक्टर, जॉब इज मच मोर सिक्योर हियर इन द बैंकिंग सेक्टर। तो अब आपको मैं बोलूंगा 3 to 4 months ऑफ योर सैलरी शुड बी देयर इन द इमरजेंसी फंड, बी इट एनीथिंग। आप कुछ भी बोलो, मेरा ये नहीं, मेरे खर्चे वैसे नहीं है, ये नहीं है, बट 3 से 4 महीने आप इनकम इसको फॉलो करो, एटलीस्ट 3 to 4 months ऑफ योर मंथली इनकम इमरजेंसी फंड में रखो आप। कि कल को कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं है, कल को वॉर हो, कल को कुछ और हो, मतलब कोई महंगाई बढ़े, कुछ हो, मेरे पास ये पैसा है विच गिव्स मी अ कुशन। अब कुशन क्यों जरूरी है? कुशन इसलिए जरूरी है कि ताकि आप डरे नहीं, ताकि आप बिना डरे बाकी पैसे को सही जगह, ग्रोथ ओरिएंटेड चीजों में निवेश कर सके, इन्वेस्ट कर सके। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग इमरजेंसी फंड इज यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अदर फंड्स दैट यू हैव। सो वंस यू हैव टेकन केयर ऑफ द इमरजेंसी पार्ट ऑफ इट,
the next thing that is important is having yourself adequately insured. Here also you might have an advantage. I don't know कि आपका individual banks में health insurance कैसे work करता है. लाइफ इंश्योरेंस का आई हैव सम आइडिया, बट हेल्थ इंश्योरेंस का आई डोंट नो कि आपको बैंक में कितना कवर मिलता है एंड वेयर और एवरीथिंग इज कवर्ड और नॉट. बट मतलब मैं जेनेरिक रखूंगा बिकॉज आई नीड टू मेक सेंस टू एवरीवन, तो आई कीप इट वेरी जेनेरिक. तो जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, हमारा एक पिलर, ये 3 पिलर में मैंने इसको बांट दिया है. 3 पिलर में हमको पूरा फाइनेंशियल प्लान करना है. पहला पिलर है हैविंग इमरजेंसी फंड. सेकेंड पिलर इज having yourself or keeping yourself adequately insured, right? तो इसमें 2 इंश्योरेंस हमें करना है. हमें ज्यादा चीजें ना समझनी है. हमें समझ के टाइम वेस्ट ही नहीं करना है ज्यादा चीजें का. आप जितना समझने की कोशिश करोगे और जितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आप समझने की कोशिश करोगे, आप बैंक एम्प्लॉयज, आई नो यू नो लॉट ऑफ अबाउट लॉट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइक ट्रेडिशनल इंडाउमेंट, बट डोंट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स. आप जितना चीजों को सिंपल रखोगे ना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, उतना चीजों को समझना इजी होगा. कि इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस क्या है, ये इंश्योरेंस इसलिए है कि अगर बाई चांस मैं नहीं रहा कल तो ये मेरे लिए लाइफ कवर है, तो मेरी फैमिली सुरक्षित रहेगी, मतलब इस पैसे को यूज करके उनका आगे का जिंदगी चलेगा. दिस इज टर्म इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? इफ आई हैव अ मेडिकल बिल टुमारो, कुछ हादसा हो गया या कुछ बीमारी हो गई कि मुझे एक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और कुछ मेडिकल बिल आ गई, तो हेल्थ इंश्योरेंस उसको पे कर देती है. सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं. तो हमें ये 2 इंश्योरेंस ही करनी है. और आपको कोई बोले क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल पॉलिसी, ये सब चीजों में हमें ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. तो अब इन 2 चीजों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं. टर्म इंश्योरेंस क्या होती है? टर्म इंश्योरेंस गिव्स यू लाइफ प्रोटेक्शन, राइट? अगर कुछ होता है तो फैमिली गेट्स दैट अमाउंट. सिंपल प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, जिसमें कोई अपना कोई हिडन ना बेनिफिट है ना हिडन क्लॉज है. सिंपल प्रोडक्ट कि अगर मान लो हमने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवाया टिल द एज ऑफ, ये इसमें एक एज भी हमें बताना पड़ता है. मान लो टिल द एज ऑफ 80 ईयर्स की उम्र तक हमने टर्म इंश्योरेंस कराया, तो अगर इस बीच में कुछ हो जाता है तो फिर फैमिली को उतना पैसा मिल जाता है. नॉर्मली लोग 80-85 की बात करते हो, मैं तो बोलता हूँ कि आप 60 तक भी कवर करो. अपना अर्निंग एज ही कवर करना होता है. बिकॉज अगर आप 60 के ऊपर तक अगर आप जी जाते हो, इफ यू लिव लॉन्गर देन टिल द टाइम यू एज टर्न 60, तो ऐसे भी आपने अपने लाइफ में इतना कमा लिया कि आपके फैमिली के लिए आपने इनफ छोड़ा है. और अपने अर्निंग को, टर्म इंश्योरेंस इज अ अर्निंग रिप्लेसमेंट थिंग, नॉट अ थिंग टू अर्न मनी. आपको ये समझना होगा. इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन. इंश्योरेंस एक जरिया नहीं है जहां से आप पैसे कमाते हो. इट्स जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. तो प्रोटेक्ट करने का ही काम करते हैं इससे. जो इसका डेफिनेशन है वही करते हैं. तो 60-65 ईयर्स के एज तक भी अगर आप कवर लेते हो, विच इज सफिशियंट, अगेन डिपेंडिंग ऑन केस टू केस. मैं डिनाई नहीं करता हूँ, मैं इसको ये नहीं बोलता हूँ कि आप 75 80 85 तक करते हो तो गलत है. बट मिनिमम आप 60-65 तक आप कवरेज लो टर्म इंश्योरेंस की. और प्रीमियम को ऐसा एक्सपेंस कंसिडर करो कि प्रीमियम वॉट एवर यू आर पेइंग इज एक्सपेंस आउट ऑफ योर पॉकेट. तो टर्म इंश्योरेंस ये हो गई. और वी एट राकेश फिंसर वी हैव एक्सक्लूसिव टाई अप्स विद इंश्योरेंस कंपनीज. और हमारा जैसे ये अप्रोच रहता है इंश्योरेंस कंपनीज को, वी हैव डन लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड नेवर आई वुड, मतलब ये आई एम एक्चुअली फीलिंग ग्रेटफुल टू द इंश्योरेंस कंपनीज. और हमारा जो इसमें हार्डवर्क रहा है, वी हैव नेवर फेस्ड रिजेक्शन. क्योंकि हम पहले ही एक अंडरराइटर से एक प्री अप्रूवल काइंड ऑफ ले लेते हैं. वी हैव नेवर फेस्ड रिजेक्शन इन प्रोवाइडिंग टर्म इंश्योरेंस टू अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन. तो अब Right. हमारे थ्रू आप इसमें डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो. इट्स नॉट दैट वी इवन चार्ज फीस. वॉट एवर कमीशन वी गेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, दैट आर फीस बेसिकली इज टेकन केयर फ्रॉम देयर. आपको कुछ अपने एंड से, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा. अगर आपके माइंड में वो डाउट है तो you don't have to pay anything extra if you get your insurance policy through us, and we have a dedicated team managing insurance. तो ये होगी टर्म इंश्योरेंस की बात. हेल्थ इंश्योरेंस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज आई थिंक बीइंग बैंक एम्प्लॉयज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है. अगेन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि एक पर्सनल पॉलिसी
डेफिनेटली फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज 100% इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय होते हैं या प्राइवेट बैंक में काम करते हो तो एक हेल्थ इंश्योरेंस बिकम्स कंपलसरी, आपको करना ही करना है, एक पर्सनल। अगर आपके आपके पास बैंक प्रोवाइडेड पॉलिसी है तो भी आपको करना है, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस बीइंग अ प्राइवेट एम्प्लॉय इज, कल को आपको कोई जॉब लॉस होती है, कुछ भी ऐसा होता है, योर दैट कॉर्पोरेट पॉलिसी विल cease to exist for you. You need to have that personal policy, and it gives you a lifetime continuity benefit. कल को आपको कोई बीमारी हो जाए, आज भले बीमारी ना हो, आज का आपका कोई दवाई नहीं चल रहा है, इफ टुमारो यू गेट एनी illness, disease, whatever it is, no health insurance company, if you have a personal policy, it's a IRDA rule, no health insurance company can deny renewal to you. कल को आपका आपने 20 लाख 25 लाख का अपने पॉलिसी कराया, if you have done a 25 lakhs policy for yourself and your family, so if there is any disease, अगर आपने चाहे 20 लाख का क्लेम भी किया, अगले साल कंपनी आपको नहीं बोल सकती है कि भाई मैं आपका आई इफ यू हैव यू ऑलरेडी टेकन दैट 20 lakhs क्लेम, सो एक तो हम आपको ये बोल सकती है कि हम आपको पॉलिसी आपको डिसकंटिन्यू करना होगा, वो भी नहीं बोल सकती। एज सेकेंडली दे कांट इवन रेज द प्रीमियम फॉर यू, वो ये नहीं बोल सकती आपने आपने क्लेम किया है तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, या और यू हैव टू पे लोडिंग ऑन योर प्रीमियम। सो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिट है, एंड IRDA हैज मेड इट वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, एंड नो इंश्योरेंस कंपनी कैन एक्चुअली बाईपास दिस रूल, if I put it that way. There cannot be discrimination if any claim is done. हो सकता है आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट दे रही है, वो डिस्काउंट दे कैन काइंड ऑफ नॉट गिव इन फ्यूचर, बट दैट इज नॉट मच, दैट इज लाइक 10-15% ऑफ द प्रीमियम में भी, उससे ज्यादा कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई इंश्योरेंस की बात। सो फर्स्ट वी कवर्ड इमरजेंसी फंड, नेक्स्ट वी कवर्ड इंश्योरेंस। थर्ड, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला 3 पिलर है, 2 पिलर हो गए, अब थर्ड पिलर ऐसा है जिसमें वी हैव टू फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन एसेट्स। अब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करनी है। 2 हो गया। अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो लॉन्ग व्हाट डू वी नीड टू डू व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। Everyone has to retire some or the other day. Being again working in PSU banks, you have that job security, आपके पास बहुत certainty है, क्योंकि क्या होता है बाकी जगह में, क्या होता है कि certainty नहीं है, कल को क्या होगा, हमें हमेशा उनके मन में डर रहता है। यहाँ पे certainty है तो planning becomes a lot more easier। आपको पता है रफली थोड़ा थोड़ा करके आपका सैलरी इंक्रीज होगा एवरी ईयर, यू हैव दैट स्टेबिलिटी, तो आपको थोड़ा सा अपना एक्सपेंसेस रीएडजस्ट करना है, थोड़ा कम करना है इफ पॉसिबल, एंड यू हैव टू सिस्टमैटिकली डेफिनेटली इन्वेस्ट इन प्रॉपर प्लेसेस, सिस्टमैटिकली एवरी मंथ इन्वेस्ट करना है। हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, डोंट हैव दैट प्रॉफिट माइंडसेट। क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत जगह देखा है, हम में से भी बहुत लोग होंगे, मैंने भी पास्ट में ये चीज करके अपनी गलती से सीखा है। प्रॉफिट माइंडसेट मत रखिए, वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट रखिए। एक का हमको 1.5 नहीं करना, हमको 20% प्रॉफिट कमा के खुश नहीं होना है कि हमने इफ यू पुट 1 लाख रुपीज इन अ स्टॉक एंड वी मेड 25,000, ओ माय गॉड वी हैव मेड 25% रिटर्न इन 1 मंथ। कुछ नहीं होगा उससे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। व्हाट विल मेक अ डिफरेंस, आई टेल यू व्हाट विल मेक अ डिफरेंस। इफ अगर आप ऐसे जैसे मैनेज करते हो, उससे आप जैसे तैसे करके एसेट क्रिएट कर लेते हो, मान लो आप रिटायरमेंट तक फिर भी आप 50 lakhs 1 करोड़ जो भी अक्यूमुलेट कर लिया, 2 करोड़ अक्यूमुलेट कर ली, बट सही तरह से अगर आज आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो ना, दिस फिगर कैन इजीली बी 3 times 2 times 3 times 4 times ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। आप अगर 1 करोड़ सोच रहे हो तो आप 4 करोड़ के बारे में सोचो। आप 20-25 हजार 1 लाख 2 लाख कमाने के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। तो दिस इज व्हेन आई टॉक अबाउट हैविंग अ वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट वर्सेस अ प्रॉफिट माइंडसेट। क्योंकि प्रॉफिट माइंडसेट में क्या होगा ना, वो 1 लाख का 1,25,000 करोगे, फिर 1,75,000 भी होगा। If you think, or if you have that profit mindset, one day you will make 1 lakh, you will do 1,25,000, the other day you will lose 25,000, and it's a zero sum game where like even SEBI got that number out, और हम अग्री करेंगे क्योंकि हमारे में भी अगर मैं पोल करूं तो यही नंबर आएगा कि मोर देन 80% पीपल हु ट्रेड रिटेल इन्वेस्टर्स एक्चुअली लूज मनी। अगर मैं यहाँ पोल कर लूँ ना तो नंबर यही आएगा, इसके आसपास ही आएगा। मुझे अच्छे से पता है ये चीज, मैंने बहुत जगह आजमाया है
एंड किया है कि आप इन्वेस्ट करके तो पैसा बना सकते हैं, बट आप ट्रेड कर रहे हो ना, कि वो ट्रेड स्टॉक लिया 15 दिन में बेच दिया, फिर खरीदा, फिर 1 महीने में बेच दिया, या जो भी, उसमें क्या होता है, एक तो यू बाय सेल स्टॉक्स एट प्रॉफिट, और लॉस वाले हमारे पोर्टफोलियो में रह जाते हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करें ना, तो प्रॉफिट को तो छोड़ो, बहुत बहुत केसेस में दैट विल बी लॉसेस दैट वी मेक ऑन इक्विटी। फिर हम निराश होकर इक्विटी मार्केट को ही ब्लेम करते हैं कि इक्विटी मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सही तरह से इन्वेस्ट करना है। अब कैसे करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इस पे आते हैं कि हमें एक एसेट एलोकेशन का माइंडसेट रखना है। पहले तो हमें अपना गोल्स निर्धारित करना। वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर गोल्स, व्हाट फाइनेंशियल गोल्स वी हैव, बी इट, क्या गोल्स होते हैं हमारे, इंपॉर्टेंट गोल्स और नॉट सो इंपॉर्टेंट गोल्स। दो बकेट में इसको डिवाइड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है? मैरिज कुड बी इंपॉर्टेंट गोल, देन चाइल्ड का प्लानिंग कुड बी इंपॉर्टेंट गोल, रिटायरमेंट इज अ इंपॉर्टेंट गोल, बाइंग हाउस इज इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट गोल है। नॉट सो इंपॉर्टेंट में कार, चलो कार, बाइंग अ कार इज हियर एंड देयर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। मैं तो इसको इंपॉर्टेंट गोल मानता हूँ, क्योंकि हमारे लिए, सी, फाइनेंशियल, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस, हमें हमारी अपनी गाड़ी होती है तो हमें हमें वो इंडिपेंडेंस मिलती है। इट्स नॉट दैट आई एम टॉकिंग टू मतलब रेगुलर इंडिविजुअल्स, जिनको क्या है कि वो, उनके लिए क्या है, उबर उबर और ये सब आने के बाद इतना कन्वीनियंट हो गया कि चलो हमारे लिए भी कन्वीनियंस बढ़ी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट कार, फॉर एटलीस्ट फॉर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे तो, आप मेरी, अगर मेरी केस देखो, तो मैं तो आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट, मीट मीट क्लाइंट्स ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं कैब में या ये सब में अगर टाइम वेस्ट करूंगा, तो मेरे लिए इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट आई अर्न। आई माइट मिस आउट ऑन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं वो उसको उसको अगर ये सोचूं तो ये अगेन, दिस इज केस टू केस। हो सकता है फॉर समवन buying a car is important, for someone it might not be important, but what are the not so important goals? Travel एक not so important goal है, अगेन इसको भी दोनों जगह आपको बेसिकली, मैं अपने हिसाब से सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। इसको अपने हिसाब से पहले आप नोट डाउन करो, सिट डाउन एंड नोट इट डाउन, कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल्स क्या, नॉट सो इंपॉर्टेंट गोल्स क्या। फिर हमें इंपॉर्टेंट गोल्स पे पहले काम करना है। First, we need to take care of all the important goals that we have, and then only think about investing for not so important goals that we have. So, retirement is definitely one which everyone needs to plan. मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, ये केस टू केस है। अगेन, अगर आपको आपका चाइल्ड है इन दैट एज ब्रैकेट ऑफ लेट्स से लेस देन 10, या अभी अभी हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना है उसको, तो आप डेफिनेटली इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड देन बाइंग अ हाउस बिकम्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगेन इट डिपेंड्स कि कैसे कैसे आप इसको देखते हो, बट दीज 3-4 गोल्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एटलीस्ट दो गोल से स्टार्ट करो। मैं अपने आप, मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आप चीजों को सिंप्लीफाई करें, कम से कम चीजों से स्टार्ट करें, और ग्रेजुअली बिल्ड ऑन दैट। डोंट गेट ओवरवेल्ड विद स्टार्टिंग। मतलब एक बार आप, अगर आपको लगेगा ना, आप ये सोचोगे कि मुझे तो सब कुछ करना है, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। स्टार्ट विद 1 or 2 गोल्स, पहले उसके उससे स्टार्ट करें, एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड ऑन ऑन दैट आइडिया। अब कैसे गोल की प्लानिंग करनी है? बहुत सारे टाइम मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, कितने फंड्स होने चाहिए, कैसे गोल्स के लिए प्लान करना है? तो हमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है। लेट्स से अगर एक 30 ईयर ओल्ड है, मैं एक, मतलब एक केस स्टडी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। लेट्स से इफ अ पर्सन ए इज 30 ईयर ओल्ड, ठीक है, उसको कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? ही द पर्सन हैज गॉट पर्सन जस्ट गॉट रिसेंटली मैरिड। तो अभी उसका उसको अपने रिटायरमेंट और एक उनका चाइल्ड है, लेट्स से। तो चाइल्ड के एजुकेशन और रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना, ये दो गोल्स बहुत लॉन्ग टर्म है, राइट? अब 30 ईयर ओल्ड है, तो उसका रिटायरमेंट वो मे बी 55, मे बी 60, तो 25 to 30 ईयर्स तो फॉर श्योर है। तो एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम शुड गो टू योर रिटायरमेंट कॉर्पस। चाइल्ड का एजुकेशन के लिए, अगेन अगर आप हायर एजुकेशन इंटरनेशनल सोच रहे हो तो अलग कॉस्ट पड़ता है, पहले हमें कॉस्ट निकाल लेना है, कॉस्ट कितना रहेगा। कॉस्ट के हिसाब से वी हैव टू काइंड ऑफ प्लान। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लो चाइल्ड का एजुकेशन के लिए 15 ईयर्स है, रिटायरमेंट के लिए 25-30 ईयर्स है, दोनों गोल के लिए हमारे पास बहुत लंबा समय है। इंडिया एज अ इकोनॉमी इन लॉन्ग टर्म, एवरीवन नोज दैट इट इज ग्रोइंग, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगी, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज
so many people, people if they consume थोड़ा थोड़ा करके भी तो बहुत बड़ा डिमांड जनरेट होता है। एंड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी है, राइट? महंगाई बढ़ती रहती है। जैसे महंगाई बढ़ना एक्चुअली कंपनीज के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनका वो लोग का रेवेन्यू बढ़ता है लॉन्ग टर्म में, देयर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस। सी, लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, बट लिटिल इन्फ्लेशन, मतलब थोड़ा इन्फ्लेशन, 3 to 5% इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, इट इज हेल्दी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इट इज हेल्दी, उतना महंगाई बढ़ना हेल्दी है। एंड स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स इट इज गुड, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा तभी बनेगा। इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ इज हाउ मच यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम इक्विटी मार्केट इन लॉन्ग टर्म। अगर हमारा इन्फ्लेशन लेट से 5% है, इंडिया का ग्रोथ 7% है, तो आप निफ्टी में, सिंपल निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करो तो आप 11-12% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन अ ईयरली बेसिस, राइट? तो अब अगेन, अगर मैं, आप थोड़ा सा इसको और स्मार्टली करो, एडवाइजर के साथ एसोसिएट करो, तो दिस रिटर्न कैन इजीली फ्रॉम 11-12, द कंबाइंड एफर्ट कैन इजीली टेक दिस रिटर्न टू लॉन्ग टर्म में 14% और सो। तो 14% हमारा लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड रिटर्न बन गया ऑन फ्रॉम इक्विटी मार्केट। हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में डालना है व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड एजुकेशन, जो 15 साल दूर है, एंड रिटायरमेंट लेट से जो 30 ईयर्स दूर है। अगर इतना बड़ा हमारा टेन्योर है तो हम पूरा पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं। अब लेट से 100% एलोकेशन नहीं भी करें तो 80% एलोकेशन डेफिनेटली इक्विटी में कर सकते हैं। तो अब कैसे करना है इसको? मेक इट वेरी सिंपल। मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करें, एसेट एलोकेशन करें। लार्ज कैप में भी लार्ज कैप 40, मिड कैप 30, स्मॉल कैप 30, सिंपल रख के वैसे कर ले एलोकेशन। एंड आप एसआईपीज करें फॉर दोज गोल्स। एंड इसमें अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अब अगर मान लो आपका रिटायरमेंट या आपके जो भी आपका गोल है जस्ट 3 to 5 years अवे, देन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एसेट एलोकेशन। क्योंकि मतलब उस केस में क्या होगा ना, आपके पास 3 या 5 साल है तो बहुत लंबा टेन्योर नहीं है। आप मान लो, ऐसा फर्ज करो कि 3 साल ही आपके पास है, कल को आपने 2.5-3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता है इंडियन मार्केट में, तो अभी क्या है कि बहुत खराब टाइम, अभी लास्ट 1-2 साल में तो मार्केट हैज नॉट गिवन मच रिटर्न, तो खराब टाइम में आपको निकलना पड़ता। तो ठीक है, रिटर्न्स बनी है इन 3 साल में, ऐसा नहीं है, बट स्पेशली इन द लास्ट 1 year नो रिटर्न्स हैज बीन मेड। तो अब अपना एसेट एलोकेशन ऐसे करो कि हैव 40 to 50% इन इक्विटी, 30-35% इन डेट, और फिर 10-15-20% आप आपके केस टू केस थोड़ा सा इंटरनेशनल इक्विटी में, थोड़ा कमोडिटीज में, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डिपेंडिंग क्या सिनेरियो है। जैसे अभी का मार्केट, जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि हाउ वी डू थिंग्स एट राकेश ऑफ फिनसर्व, अभी के मार्केट में वी आर कटिंग डाउन हेवीली ऑन इंटरनेशनल इक्विटी एंड हैविंग मोर एलोकेशन टुवर्ड्स द इंडियन इक्विटी मार्केट, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत पैसे बने हैं। तो उसको सिक्योर करके, अगर इंडियन मार्केट्स अभी डाउन है वहां पे उसको डिप्लॉय कर दे, तो we actually get a good opportunity, good entry point for those funds also. But in a normal scenario like in 2025, 20%, मतलब अर्ली 2025 में हमारा एलोकेशन जो क्लाइंट्स का था वो 20% वॉज इन कमोडिटीज एंड इंटरनेशनल इक्विटी। तो अगेन वही है कि आपका होराइजन क्या है। अगर 3-5 साल, 5 साल, 6 साल है तो बहुत एक्टिवली इसको हमें मैनेज करना है। अगर आप 20-25 साल सोच रहे हो या इवन 15 ईयर सोच रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना सिंपल एसेट एलोकेशन रखो, 80 to 100% इन इक्विटी, रेस्ट इन डेट, ऑल इन इक्विटी मार्केट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज इन 15-20-25 years दिस मार्केट इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो। और अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होता है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा एसेट एलोकेशन अपना चेंज कर सकते हो। अब सिंपल मैं इसको 5 स्टेप फ्रेमवर्क, आपको एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क के साथ छोड़ दूंगा आपको। दिस इज माय लास्ट आइडिया कि कैसे इसको, अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे दिया है। एक म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा कवर करना है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या होते हैं, जस्ट इन अनदर 4-5 years। एंड आई लीव यू विथ 5 स्टेप्स जो आप, विच इज एक्शनेबल, जो आप आज से ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहले हम म्यूचुअल फंड्स की क्विकली बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड इज अ वेरी सिंपल टूल। आई वुड कीप इट इन डायरेक्ट कंपटीशन विद इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन इक्विटी। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करते हो, म्यूचुअल फंड आपके टाइम बचाता है, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट देता है, इट गिव्स यू ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग। आप इट इज अ वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट। इट आजकल तो क्या है, 8% में आपका फंड मैनेज हो जाता है। तो इट्स अ वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप सिस्टमैटिकली आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल व्हीकल दैट म्यूचुअल फंड हैज, और तरीका बेसिकली कि आप इन्वेस्ट कर सको. सो SIP आप जानते हो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, बट करना और नॉलेज और एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिफरेंस होता है. उसी के बारे में हम बात करते हैं कि हैव यू नो अबाउट व्हाट इज SIP, हाउ टू एक्चुअली डू SIP कि कैसे होता है, बैंक मतलब आपका KYC करना है, ये सब आपको सारी चीजें पता है. बट ये है कि सिंपल अपना एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट या डिफरेंटली इसको प्लेस करना है. अपने हर गोल के लिए आपको अलग से SIP मार्क करना है, और कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है. कल को ये नहीं कि आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया है अपने रिटायरमेंट के लिए और आप वही फंड को आप यूज करके आप ट्रेडिंग चालू कर दिए. मतलब मैंने 10,000 रुपीज की SIP करके 5 लाख रुपए जब अक्यूमुलेट कर दिया, अब उसको निकाल के यार म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बनते, उससे यू स्टार्ट ट्रेडिंग इन इक्विटीज थिंकिंग कि नहीं यहाँ से आई जनरेट 30-40% रिटर्न पर ईयर. तो वो नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने से SIP कंटिन्यू करना है. एंड वेल्थ आपका जैसे जैसे स्वेल होगा, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगा, और यू यू विल एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ गोइंग फॉरवर्ड. तो उसमें क्या होगा कि यू डोंट हैव टू पैनिक वरी अबाउट मार्केट्स अप्स एंड डाउन. क्योंकि देखो, एक बार व्हेन यू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग फंड्स, आज मान लो आप 5-6 साल 10 साल से आप मान लो 10 साल से आप SIP कर रहे हो, मे बी यू हैव बिल्ट अ 40-50 लाख SIP का वो फंड, ऑल्सो म्यूचुअल फंड में आपका अक्यूमुलेट हो गया. वो 50 लाख का फंड एक वॉर में फिर 5 लाख 6 लाख डाउन हो जाता है, 7 लाख डाउन हो जाता है. बट वी डोंट नीड टू पैनिक. अगर पैनिक हमें तब करना है कि अगर हमें वो पैसा 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, तब हमें पैनिक करना है, बहुत जरूरत है. बट अगर वो पैसे हमें 10 साल बाद चाहिए, तो हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 50 का 43 आया है, तो वापस 50 भी होगा, वापस 1 करोड़ भी आगे जाके होगा इन 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 सम टाइम. सो वी डोंट हैव टू पैनिक. So, up coming to the five steps that we need to take, and then I would maybe hand over to Mohammed, and we can open for question answers. Pehla, we have to kind of control our expenses. It starts with managing your expenses. A proper Excel में you need to note down your income and your expenses and see where you can cut down your expenses so that you can invest more in SIPs. जितना ज्यादा आप कर सकते हो, जितना फ्रंट लोड कर सकते हो, एंड इफ यू डोंट हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आपकी एक्सपेंसेस नहीं है ज्यादा, आपके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम वेर यू कैन इवन maybe invest 50-60% of your salary towards long term financial goals. क्योंकि अभी आपको वो स्ट्रेस नहीं है, वो आपको घर चलाने के खर्चे हो, या फिर आपको बड़े खर्चे आपके नहीं आ रहे, तो इस टाइम पे आपको फ्रंट लोड करना है अपना अपना इन्वेस्टमेंट्स, एंड यू नीड टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस विच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. उसके बाद मैंने जो बताया, दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2 इज बिल्डिंग योर इमरजेंसी फंड. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है. स्टेप 3, having adequate term and health insurance if required. Again, अपना असेसमेंट करना है. मैंने इंपॉर्टेंस तो बता दिया था, बट एक चीज और इम्पोर्टेंट जो मुझे बतानी है फॉर इंश्योरेंस, यू शुड डू इंश्योरेंस ओनली इफ रिक्वायर्ड. अगेन, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. अगर आपको मतलब आप देखोगे तो बहुत कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा कि अगर आपके ऊपर, स्पेशली अगर टर्म इंश्योरेंस तब आप कराना चाहिए तब जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है. हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ड ऑन नीड टू नीड आपको कराना चाहिए. बट अगर नीड है तो एक दिन भी अवॉइड या डिले नहीं करना चाहिए. देयर इज ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ डिले बोथ इन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस. नंबर 4 आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही से करना है. आपको फोकस्ड होकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना. एंड नंबर 5, इन ऑल इंपॉर्टेंस, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 है, वी हैव टू अवॉइड मिस्टेक्स. मिस्टेक्स क्या है, मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ. टिप्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, इनके बेसिस में, न्यूज, इनके बेसिस में अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है. नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है. वी हैव टू बी लाइक, कॉन्फिडेंट होना अलग चीज होती है, वाइज डिसीजन मेकिंग अलग चीज होती है, बट वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट.
कि भाई मुझे तो पता है मार्केट गिरने वाला है, मैं क्यों अपना पैसा इक्विटी में रखूं, सारा का सारा पैसा निकाल के मैं डेट में। मतलब मैं आपको अभी केस स्टडी अभी की देता हूँ। वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड एंड अ क्लाइंट, रिसेंटली व्हाट ही डिड, एकदम मार्च, मिड में मार्च, अराउंड द 20th of मार्च, जब वॉर अपने पीक पे था, तो उसने अपना सारा का सारा इक्विटी बेच दिया। एंड नंबर इज लाइक अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़। और बोला कि नहीं, अब तो मैं सही टाइम की वेट करूंगा और इन्वेस्ट करूंगा। द टाइम नेवर कम्स। अब जो प्राइस में उसने बेचा है, द द ही इज ऑलरेडी इन अगर वापस से आज वापस से इन्वेस्ट करता है, ऑलरेडी इन 15 लाख रुपीज लॉस ऑन दैट 1 करोड़। आप सोचो, कुछ नहीं करता। आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एट टाइम्स डूइंग नथिंग इज फार मोर बेनिफिशियल। एंड इसलिए बोलते हैं ना, बहुत लोग होते हैं जिनको ज्यादा चीजों का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इतना नहीं है, एक एडवाइजर है उस पर डिपेंडेंट है, और एडवाइजर अगर सही है तो क्या है कि वो कहाँ से कहाँ उसका वेल्थ बढ़ जाता है। बट अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे और ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ओवर एक्टिवली मैनेज करने लगोगे, ओवर कॉन्फिडेंट बन के कि मुझे तो पता है मार्केट गिरने वाला है। मैं बहुत सारे अपने ग्रुप्स में, स्टॉक मार्केट ग्रुप हो या वीआई वाले ग्रुप में भी हो, जहाँ के लोग अपना शेयर करते हैं कि मुझे तो पता है मार्केट गिरने वाला है, यू शुड नॉट हैव पैसे, और ऑल योर मनी इन इक्विटी शुड बी कंप्लीटली विड्रॉन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनकी बात मत सुनिए, अपना प्लान पे फोकस करिए। जैसे मैंने बताया, आपको 6 महीने में पैसे चाहिए तो आपको डरने की बहुत जरूरत है। पर अगर आपको आपको पैसे 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, तो डरने की आपके पास कोई भी वजह नहीं है। चाहे कोई 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 वॉर कहीं हो जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो एट ऑल कॉस्ट मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड। एंड अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसी और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मिक्स करते हो और वैसा डिसीजन ले लेते हो, तो क्या होता है उस केस में? व्हाट हैपेंस इन दैट केस इज, इफ यू मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, द there is those mistakes are irreparable, मतलब you can't go back and correct your mistakes, right? आप पीछे जाके 3 साल पीछे जाके तो, या 2 साल पीछे जाके तो अपना मिस्टेक जो आपने कर दिया कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी, ट्रेडिशनल पॉलिसी आपने डाल दिया, जो आपको मे बी अब रियलाइज हो रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपको लगता है और आप बिल्कुल श्योर हो कि अब ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है, तो आप करिए। बट हाफ हार्टेड मत करिए ये सब प्रोडक्ट्स में, स्पेशली कॉम्प्लेक्स। हाफ हार्टेड प्रोडक्ट में आप सिंपल प्रोडक्ट्स में करिए ना, कल को आपको नहीं समझ में आएगा, आप चेंज कर सकते हो। बट हाफ हार्टेड होके यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहां से आप निकल नहीं सकते। ये सब मैं अपने आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आई एम शेयरिंग, बिकॉज व्हेन आई गो टू लार्ज क्लाइंट्स, व्हेन आई विजिट लार्ज क्लाइंट्स व्हिच where they give you they give us a mandate to manage their 5 crores 10 crores, उनकी जब मैं डिसीजंस देखता हूँ जो उन्होंने पास्ट में लिया है, उन्होंने लिया है या उनके पेरेंट्स ने लिया है, जैसे भी जो भी डिसीजन लिया गया है, वो डिसीजंस बहुत टाइम मैंने देखा है कि आई कांट गो बैक एंड चेंज। व्हाट आई कैन बेस्ट डू इज, गोइंग फॉरवर्ड आई कैन avoid those mistakes, but I can't go back and change what the decisions are already which have been made. डैमेज कंट्रोल हो सकता है, डैमेज जो हो गया उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, या उसको रिपेयर कंप्लीटली रिपेयर नहीं हो सकता वो। तो ये इन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। ये 5 पॉइंट्स आप ध्यान रखो। सी, एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई वी आर हियर, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या, व्हाई वी नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग? बिकॉज वी नीड पीस ऑफ माइंड इन टूडेज वर्ल्ड एंड एरा वेयर थिंग्स आर सो अनप्रिडिक्टेबल। अगर हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, अगर हम सही एसेट्स में इन्वेस्ट करके उसको सही तरह से इसको बिल्ड कर ले, तो कल को दुनिया में क्या हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वी बिकम फाइनेंशियली सिक्योर्ड। तो what I would encourage all of you to do is today, कि आप आज से ही स्टेप्स लेना चालू करो टुवर्ड्स थिंकिंग लॉन्ग टर्म। और सारे चीजें जो मैंने बताया, स्टेप्स मतलब एक स्टेप नहीं लेना, हमें हमें सारे स्टेप्स को लेना है। अगर आप एक चीज कर लोगे, जस्ट इफ यू डू जस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विदाउट इमरजेंसी फंड, वो बोलते हैं ना, वैसे ही हाल होगा जैसे एक बिल्डिंग बिल्डिंग तो आपने खड़ी कर ली, बिल्डिंग का फाउंडेशन ही वीक है, तो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स कर सकती है। वैसा काम नहीं करना बिल्कुल भी। सारे चीजों, सारे फैसेट्स को कंसिडर करते हुए, considering all factors, we need to come up with a solution for ourselves, and हमें अपना जो प्लान है उसको फुल प्रूफ रखना है। कल को कुछ भी हो ऊपर नीचे, तो आर प्लान stays consistent and doesn't take a hit. Thank you so much. Over to Mohammed, and you can open for open for question answer, I think. Yeah, first I would like to know, am I audible? Yes. Yes, Yeah. sir.
सो मिस्टर देव रकेचा, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, एंड you kept it bilingual also, and it required a lot of effort, I can understand, but आपने जिस तरीके से दोनों भाषाओं में हमारे सारे साथियों को समझाया है, बीट इंग्लिश और हिंदी, एंड आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही हमारा मेन पर्पस यही था कि कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी मार्केट में है, उसके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि वो वही है, वही काम कर रहा है, तो वहाँ से इंसाइट मिलना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। हम अब इसके बाद अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस लेंगे, और देव रखेजा जी से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों की भी होंगी। Yes, Parvez, from panel, like admin panel, let us have certain questions. Afterwards, we will open it for the participants. I believe कि हमारे हाँ, questions से बहुत सारे queries automatically solve होंगे, and there are certain questions raised in the chat also. If Dev can go through it, and one by one we will answer. Try to answer. Next thing, if certain question is already answered, request all participants that not to repeat that question. So please go ahead with a question from our admin panel. ठीक है। तो पहले आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे या मैं पूछ लूँ? Yeah, पूछिए please पूछिए carry आप on. पूछिए। Please, you are. हाँ, तो मैं देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे आपने तीन पिलर्स पे बात की है ना, पहला तो जो है हमारा फिक्स डिपॉजिट या उस तरह की चीज़ें, वो तो इजी है, लेकिन जब हम आते हैं इंश्योरेंस पे, इसमें यहाँ दो चीज़ें हैं। हमारे बहुत सारे साथियों में, जैसे वन ऑफ आवर फ्रेंड्स मिस्टर वामशी वाज टॉक इंटरेक्टिंग बिफोर द सेशन, सो मेनी पीपल हैव गॉट टर्म इंश्योरेंस, बट मैं जानता हूँ पर्सनली बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं हु आर विजुअली इम्पेयर्ड एंड हु हैव अदर डिसेबिलिटीज एज वेल, दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट टर्म इंश्योरेंस, बहुत उनको कंपनीज मना कर देती हैं बिकॉज ऑफ Right, लैक ऑफ अवेयरनेस। right, आईआरडीए के रूल नहीं है ऐसे, और किसी कंपनी के भी नहीं है, right. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस उनको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। तो उसमें आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पॉइंट नंबर वन। और जब हम बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड टर्म इंश्योरेंस लेते भी हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया है, मैंने भी लिया, हमारे कई साथियों ने लिया है, तो हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है उस पे हमें क्या देख के चलना चाहिए कि कुछ चीज़ें बिल्कुल। ऐसी हों जो छूट ना जाए, ताकि आगे हम्म, हमें क्लेम लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एक तो ये, दूसरा जो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं सभी बैंकों में एक सर्टेन लिमिट तक होते हैं, तो आई थिंक उसके ऊपर हम शायद उसको टॉपअप कहते हैं ना, तो टॉपअप अगर लेना चाहते हैं तो उसको हमें कैसे कंसीडर करना चाहिए, और उसमें भी हमें आपकी फर्म से क्या हेल्प मिल सकती है। या एक बात मैं बहुत ही कैटेगोरिकली क्लियर कर देना चाह रहा हूँ सभी को, कि ये कोई सेशन जस्ट बिकॉज ये जनरसिटी है देव सर की कि उन्होंने यहाँ किया है, ये मार्केटिंग के लिए नहीं है। ये मैं जो पूछ रहा हूँ, ये जस्ट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हु आर फेसिंग रियली, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, एंड मैं भी कई लोगों को नहीं दिला पाया हूँ, पर्सनली मैंने कोशिश की, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी देव सर प्लीज। श्योर। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चंस आई थिंक रेज किया है। बहुत टाइम से वी वर आल्सो ट्राइंग एंड विथ इंश्योरेंस कंपनीज कि उनको कन्विंस किया जाए कि टू प्रोवाइड टर्म इंश्योरेंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। खुद का मैं अपनी बात करूं, पहले तो मैं इंश्योरेंस क्या है करता भी नहीं था, मैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के ही काम में था। तो जब मैं खुद की इंश्योरेंस कराया, आई थिंक वे बैक इन 2017, जब अपना पहला टर्म इंश्योरेंस कराया, उसके बाद तो मैंने और कराए हैं। जब पहला अपने टर्म इंश्योरेंस कराया तो मैंने तो बहुत डिफिकल्ट हुई, मैंने खुद ही फाइट किया। आई फॉट विद द कंपनी, और मैंने अपना इंश्योरेंस मुझे कराने में कम से कम आई थिंक 2 से 3 महीना लग गया उस समय। बट मैंने फाइट करके डायरेक्टली कंपनी से करवाया। जी। तो फिर पर उस समय अपने करवाया, फिर 2020 में आफ्टर कोविड सेशंस मैंने काफी किए, बीट बीट विद लॉट ऑफ, मतलब आप अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की अगर नाम ले सकूं तो रेडियो उड़ान, स्कोर फाउंडेशन, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स, हाँ हाँ एसबीआई बिल्कुल। फाउंडेशन, जी। ऐसे कई सारे इन चीजों के साथ मैंने सेशंस किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही है, सब कुछ बहुत जरूरी है, साथ में इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। तब मैंने फिर क्या फॉर्मली मैंने इस नीड को समझा, और अपने दोस्तों के लिए, बिकॉज आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू कॉल ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स, क्योंकि अपने कम्युनिटी के लिए मुझे ये करना था। तो वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग टर्म इंश्योरेंस
विद द हेल्प ऑफ फ्यू कंपनीज जो जिसको हम ऑनबोर्ड कर पाए, समझा पाए कि भाई आपको इंश्योरेंस कंपनी को क्या समझना होता है, उनको अपना रिस्क समझना है. इफ दे आर सेटिस्फाइड कि providing insurance or providing term insurance to a visually impaired is not increasing their risk in any way, तो वो प्रोवाइड क्यों नहीं करेंगे. तो वी स्टार्टेड विथ टॉकिंग टू इंश्योरेंस कंपनीज, गिविंग देम प्रोफाइल्स कि भाई इतने स्टेबल जॉब में है, अर्न कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट अर्निंग तो देखो टर्म इंश्योरेंस मिलती भी नहीं है. बीट वीआई बीट नॉन वीआई किसी को नहीं मिलेगी विदाउट Yes. विदाउट Yes. अर्निंग टर्म इंश्योरेंस. तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब अर्निंग अच्छी है, प्रोफाइल स्ट्रांग है, लोग इंडिपेंडेंट है, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और ऐसा तो है नहीं, क्या डेटा है आपके पास ये प्रूव करने के लिए कि अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो इनके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ये बोलने के लिए तो ये बोल देते हैं, बट ऐसा कोई डेटा है नहीं कहीं. और बल्कि मैं तो बोलता, मैं उनको उल्टा मैंने ये समझाया कि अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो हम जनरली असिस्टेंट्स के साथ होते हैं, अगर नहीं भी होते तो बहुत केयरफुल होते हैं हम. मतलब कंपेयर टू, Very मतलब true. हम में इग्नोरेंस नहीं होता कि भाई अगर हम रोड पे हैं तो फिर हम बहुत केयरलेस हैं. वो रेगुलर लोगों के साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं होता वो चीज़. तो ये सारे फैक्टर्स को समझाने के बाद फ्यू कंपनीज, इवन सीनियर लेवल पीपल गॉट ऑन बोर्ड एंड गॉट ऑन बोर्डेड, एंड उनको समझ में आया कि नहीं, हमारे लिए, उनके लिए भी मार्केट है, इट्स अ ह्यूज मार्केट, राइट. विजुअली इम्पेयर्ड लोगों Yes. का मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट जो अभी तक अनसर्व्ड था. तो हमने चालू किया, एंड वी हैव ऑलरेडी, आई थिंक इन अपवर्ड्स लास्ट 5-6 years में ऑलरेडी वी हैव मोर देन 50, आप लोग के सपोर्ट से ही हुआ है ये, मोर देन 50 विजुअली इम्पेयर्ड क्लाइंट, जिसमें से बहुत लोगों ने हमसे इंश्योरेंस करवाया है. अगेन जैसे आपने कहा, ये मार्केटिंग नहीं है. आप अगर खुद करना चाहो तो तब भी मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है. जी, बिल्कुल. मैं Yes. अपने टीम को लगा दूंगा सपोर्ट करने में, वो कोई इशू नहीं है. बट अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है जहाँ पे एटलीस्ट आपको रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत लोगों का करवाया है. सो वी हैव दैट डेटा. अब तो हमारे पास वो डेटा भी हो गया है कि भाई इतने लोगों से इतना टाइम से हमने पॉलिसी कराया है, देयर हैज बीन नो कंप्लेन्स इन टर्म्स ऑफ एनी मिसहैप और थिंग्स लाइक दैट. तो अब Yes. कमिंग टू योर अदर क्वेश्चन कि भाई क्या हमें देखना है. अब इंश्योरेंस तो हमने करा लिया, करानी, अब बाकी लोगों को तो मैं बोलता हूँ कराना बहुत ईजी है, और अब बाद में क्लेम मिलना और नहीं मिलना वो दूसरी चीज होती है. बट हमारे केस में तो क्या, कराना भी मिलना भी मुश्किल है. दैट वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि अब ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा है, पॉलिसी मिल रही है. सेकंड पॉइंट जो आपने रेज किया कि आफ्टर गेटिंग द पॉलिसी व्हाट फैक्टर्स, या वो क्या चीजें हमें देखनी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जब हमारे पास आते तो क्या देखना है. आजकल तो क्या है, एआई इज देयर, राइट. ऑल ऑफ अस मस्ट बी, और सम ऑफ अस मस्ट बी यूजिंग चैट जीपीटी एंड ऑल. आजकल तो चीजों को फाइंड करना आसान हो गया है. दो आई वुड मतलब अर्ज ऑल ऑफ यू कि रीड द एंटायर पॉलिसी डॉक्यूमेंट विद व्हाट यू हैव. बट एक चैट जीपीटी होने से अगर आपको ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि इफ यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका विजुअली इम्पेयर्ड आप हो, कहीं ये पॉलिसी में मेंशन्ड है कि नहीं, चैट जीपीटी आपको पूरा, या कोई भी आपको एआई पूरा फाइंड आउट करके दे देगा वो कहाँ मेंशन्ड है, कौन से पेज पे मेंशन्ड है, और क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली. तो नॉर्मली क्या लिखा होता है, अगर आपको आरपीएल, लेट्स से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कैन बी मेंशन्ड, 100% विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी मेंशन्ड. और जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जब आप पॉलिसी करते हो, दैट देन यू मस्ट सबमिट. भले ही कोई आपको बोले कि आपका हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना कर देंगे, बट यू मस्ट सबमिट एंड टेक कंफर्मेशन ऑल्सो कि योर डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड प्रॉपरली, क्योंकि वो आपका एक प्रूफ है कि आपने जब इंश्योरेंस आप कराते हो, आपका एक एक केस या एक आपका प्रोफाइल बनता है जहां पे आपका एंटायर प्रपोजल फॉर्म वट एवर इज फिल्ड. आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भरा जाता है तो हमारे लिए और भी इजी है. प्रपोजल फॉर्म विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड is kind of available with the insurance company to see. मतलब क्लेम आता है तो that is their reference point. तो अगर आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट किया तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. यू आर इन योर पार्ट, यू हैव गिवन योर कंप्लीट डिस्क्लोजर. अब क्लेम के टाइम पे यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी, बट यू नीड टू मेक श्योर कि वंस यू हैव दैट पॉलिसी, दैट यू नीड टू चेक वेदर दीज थिंग्स आर इन प्लेस. सेकेंडली आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, टॉपअप की आपने बात की कि बेसिक इंश्योरेंस तो लोगों के पास है, बी इट 5 lakhs, बी इट 10 lakhs, बी इट 3 lakhs, वट एवर इट इज, उतना पॉलिसी है, उसके ऊपर टॉपअप कराना चाहिए कि नहीं. सी टॉपअप में प्रॉब्लम क्या है, टॉपअप में कुछ अच्छे अच्छे चीजें भी हैं, जैसे एक तो प्रीमियम बहुत कम होती है. प्रॉब्लम ये है कि रीइंबर्समेंट में ही होता है टॉपअप. टॉपअप इज हार्डली कैशलेस आपको मिलेगा, वो रीइंबर्स ही होता है. तो इसमें क्या होता है, एक तो मिलना वीआई के लिए इज अ लिटिल चैलेंजिंग, बट
मिल सकता है, ऐसा नहीं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि नहीं मिलेगा। बट एक मेरे हिसाब से एक बेस पॉलिसी, फिर भी अगर आपके पास पॉलिसी नॉर्मल पॉलिसी है भी तो भी आप एक बेस पॉलिसी लीजिए। लाइक लाइक गुड कंपनीज आर ऑफरिंग, आजकल तो इतने फीचर्स आ गए हैं कि टॉपअप की आपको जरूरत नहीं। इवन इफ यू टेक अ 15 lakhs का पॉलिसी, आपको उसमें 2x 3x का बोनस वगैरह करके इट बिकम्स 30 lakhs 45 lakhs इन इट सेल्फ। तो बेस में क्या है, पूरा आपका Okay. कैशलेस सेटलमेंट हो जाता है। द क्लेम सेटलमेंट ऑफ दीज कंपनीज और अच्छी कंपनीज का बहुत अच्छा होता है। एंड अगेन हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी चैलेंजिंग है, बट विद फ्यू कंपनीज वी आर एबल टू, मैं जितना सर्टेनिटी के साथ आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, या कन्विंस जितना हूँ कि आपको मैं आराम से करवा दूंगा, या आप खुद भी हमसे कोई असिस्टेंस लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट अभी रिसेंटली हमने 2 महीने से काफी हमें सक्सेस मिला है इसमें। तो ऑब्वियसली वी आर काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड वी फोकस ओनली ऑन गुड कंपनीज। अगर कल को कोई नई कंपनी आती भी है, और इफ अ न्यू कंपनी, और लेट्स से इवन अ कंपनी वेयर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लेम सेटलमेंट, मैं कंपनी के नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा इधर, क्योंकि मैं कोई भी कंपनी को इधर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी एंड क्रिएट बैड रेपुटेशन। बट ऐसी कुछ कंपनी है जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट उतनी अच्छी नहीं है, वो भले ही हमें पॉलिसी दे पर हम उन कंपनी के साथ काम नहीं करते। तो अब हम अच्छी कंपनीज का काम करते हैं जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ पे हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा हो विद डीलिंग विद फ्यू क्लेम्स। तो उस कंपनीज के साथ जब हम काम करते हैं तो देयर हैज बीन इनिशियल सक्सेस। डेफिनेटली अगर आप हमें बोलोगे तो हम ट्राई कर सकते हैं आपके लिए। और हम, ऐसा नहीं है कि हमारा काम सिर्फ पॉलिसी दिला के आपको बस पॉलिसी बेच के आप जॉब इज ओवर। क्लेम के टाइम पे भी यू रीच आउट टू अस, वी डील विथ योर, वी एक्चुअली काइंड ऑफ बिकम योर एम्प्लॉय व्हेन इट कम्स टू गेटिंग योर क्लेम सेटल्ड। क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे हम आपकी आप इंश्योरेंस कंपनी को सिंपली आप बोल सकते हो कि आप राकेचा फिनसर्व हमारा इंश्योरेंस पार्ट, हमारा वो है, एजेंट है। तो आप उनसे बात करो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए क्लेम्स के लिए, एंड वी गेट इट डन, वी गेट योर क्लेम सेटल्ड। कैशलेस तो आजकल ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट रीइंबर्समेंट क्लेम अगर आती है तो वी गेट द एंटायर क्लेम सेटल्ड फॉर ऑन 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 योर बिहाफ। तो वो सर्विसेज भी हम देते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग द पॉलिसी। एंड दीज आर एडेड सर्विस which Yes, actually sir. comes with without any additional cost। हम कोई आपसे कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, इट्स जस्ट दैट। और ऑब्वियसली वी आर अ बिजनेस, वी आर, मतलब हम चैरिटी तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि अगर हम नई कम्युनिटी का लेकर रहा हूँ तो आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ चैरिटी। हमें कमीशन मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से, तो दैट इज आवर सोर्स ऑफ इनकम। Thank you so very much. So, Thank you so much, Dev. हमारे पैनल से और Yeah, कोई? Mr. Dev Rakija, I'm Dr. Vamshi from State Bank of India. So Yes, hi sir, good afternoon. yeah, good afternoon. Good afternoon. See, I'd like to present something regarding health insurance. This is more a technical. I know for people who are listening to health insurance for the first time, this might be a little deep subject, but still, I believe it's relevant, especially to public sector bank employees. You said if it is private employment, it is mandatory because you never know when you change a job, when you lose a job. But even in public sector, we have a clause, okay, that any amount I think that exceeds 14,000 is taxable for the employee. That means even though the employer pays, it is treated as a perquisite to the employee. That's why it is taxable at 10, 20, or 30% depending on his tax slab. So that You're makes it, talking about the claim. yes, Okay, not insurance claim, the so medical reimbursement of banks. okay, medical reimbursement of banks. Okay, That okay, means even if 5 lakhs I get from my employer, State Bank of India, that is if I, considered as a perquisite income. right. But Okay, whereas if it is an insurance claim, it is completely tax free. right, That's right. that's the more need why even public sector employees should take health insurance also. Okay. Thank you for clarifying that point. I think I was not aware about that. Yeah, and for people who are still in the lower tax slabs, or who are still filing in the old tax regime, even Section D advantage me milega. Right, And two, the recent GST norms, both on health and life insurance, the individual and family floaters have straight away 18% discount with removal of GST. All right, these are all these are benefits for insurance nowadays. correct. Right now, my technical clarification that I want you to give me. See, for example, as I told you, 14,000 is the slab. That means any expenditure in a financial year less than 14,000 is not taxable.
Any amount above 14,000 is taxable. Now I am in the process of taking health insurance. Now that up to 14,000, I get full reimbursement from my employer, which is tax free. Do you suggest that I should have a deductible of 14,000 so that my premium comes down? Would it be a wise option, or should I avoid these deductibles? What do you say? Sir, there are companies which gives you 14,000 exact आपका match होना, it becomes very difficult, right? Because Mm, company also have their internal policies. They might give you 25,000 deductible. But correct. I think it's a good idea. I think it's a very good idea because it will what will happen is एक तो you have your own policy and you are taken care. Tax is a separate thing, but at least your coverage is taken care. Mm, There are companies which give you 25,000 deductible. You can take that 25,000 deductible, 14,000 mm, deductible, अच्छी कंपनी की मैं बात करूँ, 25,000 deductible आप ले लो, and mm, it reduces your premium by let's say 10-15% भी हो जाता है. मतलब मान लो normally if you pay let's say 15,000 rupees for your health insurance, here mm. if you can even save 2,000 rupees by Yeah. taking that deductible, it makes a difference. It makes a difference definitely. And Okay. and policy as it is, it gives you some benefits like preventive health checkup and all. जो आपका further cost which kind of reduce 3,000 का आपको मान लो अगर आपको 3,000 rupees you get a preventive health checkup, तो 13,000 Mm, से वो minus कर दो, your outgo is just 10,000 rupees for let's say a 15 lakh 20 lakh policy, like this is without any bonus which I'm talking correct. about. So Correct. which is good. I think this is a very good idea, and a point everyone should note down, and helps everyone to make their decisions. Okay, nice. Okay. And regarding mutual funds, when someone invests to, your firm, the tech serve firm that you are running, I would like to know chalo, we'll open the accounts, we'll invest, all our friends will invest. That's a very good thing to have. And what kind of annual services will you be providing? That means how frequently the monitoring can happen, the Right, XIR or calculations vis-a-vis the right, market, where do we stand? What kind of post opening services will you be providing to us? right. So first of all, obviously it's very nowadays KYC and all the operations work have become very simple. So sitting here, I can manage investors all across the country, right? Through the online platforms that we have, all the Mm, transactions happen online. So that is taken care of. Secondly, we have our own platform where you can track all your investments that you do through us, right? We mm. recommend investments you do operations. I'm not getting into nitty-gritties of all the how the entire formalities work, but Yeah, yeah. ऊपर से just telling you that yes, when you open your account with us, your investments is done. You get a mobile app and website where you can track your investments with inbuilt transaction capabilities, and transaction can be routed through us also. मतलब एक phone call या WhatsApp भी हमें करके you can Mm, initiate, you can ask us to initiate a transaction where you just need to confirm over email. So this yeah. is one thing. Now, coming to what other services that we give, monitoring happens on a regular basis. By regular we mean कि regular मतलब ये नहीं है कि रोज का monitoring. Regular means every quarter we kind of review our investors' money if change our investors' investments whatever they have done, and if changes are required we do. And vis-a-vis the benchmark, जैसे अगर Mm, आप बोल रहे थे कंपैरिजन की, यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन which vis-a-vis the benchmark we compare annually. See, every that's 3 months nice. if we compare it, it actually becomes very difficult क्योंकि 3 महीने में तो हो Yes, सकता है yes. fund manager can underperform or outperform. But Correct. annual is fund manager also has a like a time period where the fund manager also can showcase the Correct. Correct. his or her potential. So annually we kind of do the benchmark tracking, whether your investments are kind of at least kind of at par with benchmark or kind of beating the benchmark. At Correct. par is the minimum expectation. If it's below benchmark, obviously we need to reconsider and realign that investment. But if it's at Correct. par or beating the benchmark, it is kind of considerable. We can consider that. And regarding Okay. this is one thing, regarding this is just the performance. But if Correct. your goal changes, let's say your goal changes, your need change, so that also becomes our responsibility to incorporate that change into your investments also, considering all the factors including taxation. कि Yeah. कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम चेंज करते हैं तो टैक्स भी लगता है उसमें. तो अगर आपके गोल्स चेंज होते हैं, आपके नीड्स चेंज होते हैं, बिकॉज इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग एनवायरनमेंट, सो योर टुडे यू माइट
think or say something, but 1 year down the line, or let's say even 3 years down the line, the plan might change, which has to be adjusted. Correct. इसलिए मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, Correct. right? It should be easy to align with your goals. तो वो Correct. services भी we do, मतलब हमसे consult करके you can get that Okay, those so information. means ki you meant to say, Mr. Dev Rakheja, that in line with the benchmark standard of industry, you provide all the micro level support also to your clients Yes. whenever Yes. and whatever scenario is there. Thank you for your details. So actually, this is Himanshu Sahu, Senior Manager, Indian Bank, Kolkata, and General Secretary, BBWA. I have certain questions. Let's get back to the investment. Number one, you actually throw light on certain points about SIP and money management that is in the market. But let us take it in a broader way. Like suppose I have 100 rupees in my hand. And if I want to diversify, not in the market itself, I want to diversify itself, on a broader note, like some percentage in the money that is in finance market, whether it is SIP, certain stocks, or blah blah blah. Second thing, can we invest it in the housing, because housing sector is also very much stable. Third one, can we invest it in the metal, precious metal like gold, silvers, and others? So if we want to go on that line, that what should be the percentage of investment or ratio of investment in these areas? Any idea about that? If you can throw some light. Thank you, Manshu That sir, is number one. Number yes. two, insurance. We discussed about term insurance. What is your opinion about the endowment insurance, which nowadays is also being claimed by top rated companies, that they are now giving 7 to 8% of annual return, as well as life security also. Third thing, TER, like if we go through the company for our finance management in SIP or something like that, there is a total expense ratio. What does it mean? And if we want to save it, can we go for direct investment based, means without taking any companies, suppose like Rakheja FinServ, definitely your TER will be 1 to 1.5%. But if I get it, if I get the SIP directly by going to the website of the company, I may get it within 0.5%. So what is the difference between two? Of course, one thing is you will be constantly providing services, micro level management of our fund, and along with your advices, but here we will be left alone. So these three questions in brief, because we'll have to take questions of our participants also. Thank you. So thank you so much for those three questions. ऐसे तो बहुत डिटेल में मेरे को आंसर करना हो, but I'll keep it very brief so that we can take questions from other participants also. पहला क्वेश्चन आपने पूछा asset allocation था basically. Question, if I have to put it into two words. Yes, it was. Yes, It was Yeah, about it was about asset allocation. allocation. कि Yes. asset allocation आप कैसे करेंगे? So again, it's like आप टेलर के पास क्यों जाते हो, राइट? आपको टेलर, अगर आपको कपड़ा, आपको टी शर्ट, आपको कोई भी अगर फिट आ जाए तो आप सीधा टी शर्ट जाके खरीद लोगे. आप मॉल में भी जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस रहते हैं. टेलर के पास जाओ तो आपको आपके हिसाब से एग्जैक्टली सील के देता है वो, राइट? बट अभी ये एनालॉजी मैंने यूज किया, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, सी इट्स देयर इज नो वन thing which fits all. Every person has a different asset allocation. All factors need to be considered, be it quantitative, be it qualitative. उसके बाद हम asset allocation पे आते हैं. But if simply I have to put it in a simple, अगर मैं सिंपल आप बोलो कि मेरे पास कोई ऐसा कोई मेजर लाइबिलिटी नहीं है, आई डोंट हैव मच लाइबिलिटी, आई डोंट हैव एनी मतलब ऐसा कोई एक्सपेंसेस कुछ नहीं है जो आगे आने वाला है, तो आई वुड से कि यू कैन सिंपली इन्वेस्ट अबाउट 60% of your assets in equity, about 20 to 25% in debt, and about 10 to 15%, अगर मैं बोलूँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, करंट मार्केट में जब और अगेन इसको भी मतलब एडजस्ट करना है. अगर कोई गोल्ड सिल्वर लास्ट 2025 जैसे अगर रैली किया है, तो माई एसेट एलोकेशन इन गोल्ड सिल्वर विल बी नॉट मोर बल्कि लेस. तो व्हाट पीपल हैव डन, आई हैव सीन कि 2025 के बाद पीपल हैव इंक्रीज देयर एसेट. जिसका नहीं था गोल्ड सिल्वर उसने बाय कर लिया, अभी जिसका था उसने बढ़ा दिया. But I don't see it that way. 2025 में my asset allocation towards gold and silver was, if for a client it was 10%, today it is 5%.
मैं उसको कट डाउन करता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी गोल्ड सिल्वर का अभी बड़ा है और इक्विटी का कम हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इसको रखना पड़ता है, एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दीज एसेट क्लासेस मूव्स इन साइकिल्स। 2008 से 11 का साइकिल देखो, सिल्वर 5 टाइम्स तब भी हुआ था। आज भी सिल्वर कुछ टाइम में 80,000 से 4 लाख टच किया, 5 टाइम्स हुआ है। उस टाइम उस समय आप जाओ तो 5 टाइम्स की बात की, पहले भी हुआ। इट्स नॉट, आई एम नॉट जस्ट टेकिंग अबाउट वन सिनेरियो, एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। 1980s में भी आप जाके देख लेना, ऐसा ही हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि सिल्वर का मूवमेंट जब इतना स्ट्रांग होता है शॉर्ट टर्म में, तो व्हाट नॉर्मली इज ऑब्जर्व्ड, आई माइट बी रॉन्ग दिस टाइम, बट नॉर्मली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज नेक्स्ट 3 to 5 years वो एसेट क्लास साइडवेज मूव करता है या नेगेटिव मूव करता है। तो आई डोंट वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो। तो मैं अपना एसेट एलोकेशन ऑलरेडी उसमें कम कर चुका हूँ, बिकॉज इन 2000 आफ्टर 2011 इफ यू सी, सिल्वर स्टार्टेड मूविंग ओनली, मतलब सिल्वर अपना जो 2011 का हाई, जो 2000 डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, आईएनआर में तो मैं आ ही नहीं रहा। इन इन डॉलर टर्म्स, आईएनआर में तो और पुअर परफॉर्मेंस रहा है, बट इन डॉलर टर्म्स आफ्टर 2011 14 इयर्स लग गए उसको वो 2011 का हाई को टच करने में। इक्विटी मार्केट में अगर ऐसा कभी हुआ होता तो आज आई थिंक हम ये प्लेटफॉर्म में होते ही नहीं, हम इक्विटी मार्केट्स की बात नहीं कर रहे होते। बट इट इज गोल्ड सिल्वर, दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ, कि 2011 के बाद 2025 में जो लोग ने हाई पे इन्वेस्ट कर दिया 11 पे, 14 साल लगे उनको कैपिटल वापस आने में। रिटर्न इज सेकेंडरी, रिटर्न तो बात की बात है। यू माइट हैव योर ओन नरेटिव्स, माइट हैव योर ओन दिस थिंग्स, की अभी आज ईवी है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत सारी चीजें जहाँ पे सिल्वर यूज होता है। सब फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, सब कुछ कंसिडर होता है। उसके बाद ही वो 4 लाख मूव किया, उसके बाद लेकिन अब वो नीचे आ गया है। तो सी, बहुत ज्यादा, ये तो मैं तब बोल रहा हूँ जब आप एडवाइजर के साथ एसोसिएट होते, तब आप इतना सोचो। नहीं तो इफ यू आर नॉट एसोसिएटिंग विद एडवाइजर एंड यू डोंट वांट टू बी अपडेटेड एंड यू डोंट वांट टू फॉलो द मार्केट टू मच, तो आप सिंपल एसेट एलोकेशन अपना कंसिस्टेंट रखो। और कंसिस्टेंट रखने का मतलब ये नहीं है कि सिल्वर एक बार ले लिया, गोल्ड सिल्वर ले लिया तो उतना उतना ही रखना है। यू नीड टू रीएडजस्ट एवरी ईयर, ओके। मतलब आप 60% आपको इक्विटी रखना है, तो अब गोल्ड सिल्वर अगर डबल हो गया, आपने 10% गोल्ड सिल्वर के लिए एलोकेट किया, तो वो ऐसे ही 20 गोल्ड सिल्वर 17-18% आपका पोर्टफोलियो का आज हो गया होगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर बढ़ गया है। तो उतना तो आपको कट डाउन करके वापस 10% पे लेके आना है। एवरी ईयर या एवरी 2 इयर्स भी आप इसको 2 इयर्स का ब्लॉक में भी इसको री एलोकेट करते रहोगे, तो देखोगे वो एडजस्टमेंट भी इट विल वर्क लाइक ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन। वो अपने आप ही एक मैजिकली एसेट एलोकेशन आपका होते रहेगा। 60% गोल्ड, 25% इन डेट, लेट्स से 15% इन कमोडिटीज। इंटरनेशनल इक्विटी केस टू केस, अगर आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर है, या एडवाइजर के साथ एसोसिएट करके आप एक एक पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा कर सकते हो, तो यू कैन लुक एट दैट। Sir, इंश्योरेंस के Thank आपका, you. What about इंश्योरेंस के ऊपर, housing? Housing. Should we हाउसिंग, यस consider यस, housing as a good investment for long-term perspective? हाँ, तो हाउसिंग क्योंकि हाउसिंग पे being मैं, the bank employees, we all get a cheaper staff यस housing यस loan, यस, and this has a fixed installment. Suppose, as I mentioned, that I have 100 rupees, how much I should allocate in liquid like finance market, how much I should invest of that 100 rupees in paying the EMI of my loan, and how much I should invest in that like precious metal. Of course, precious metal you told. यस। Let us focus little bit on housing. अगेन मैं बहुत ब्रीफली इसको कवर करूंगा एकदम, जस्ट इन 1 or 2 लाइंस। तो अभी Yes, yes. आपका ईएमआई, मतलब घर घर खरीदना, अगेन इट्स अगेन अ कैलकुलेशन विच लॉट ऑफ पीपल डू, कि नहीं घर खरीदना अच्छा नहीं है, ये रेंटल स्टेइंग ऑन रेंट इज बेटर। बट आई एम अगेन ऑफ द मिक्स्ड ओपिनियन। आपको अगर लगता है घर खरीदना इंपॉर्टेंट है, इट हैज दैट इमोशनल वैल्यू ऑल्सो, तो आप इसको ईएमआई को, यू शुड रिस्ट्रिक्ट द ईएमआई टू 30% ऑफ योर इनकम। अगेन अब ये किसी के Okay. लिए, अगर अगर आपके लिए बहुत ज्यादा बाकी फैक्टर्स आपके लिए, मतलब बहुत आपके ऊपर और लाइबिलिटीज है और चीजें हैं, तब यहाँ पे और कम करना पड़ेगा। मैं एक स्टैंडर्ड, अगर मैं एक एक थंब रूल के हिसाब से एक नंबर बोलूँ, योर ईएमआई शुड बी नॉट मोर देन 30% ऑफ योर मंथली इनकम। अगर उतना है आपका ईएमआई, तो Okay. दैट इज हेल्दी, हेल्दी आई वुड से। उसके ऊपर होता है तो थोड़ा सा वो रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन। तो And what is the standard appreciation of housing property in India? Generally, in if we can So take you it as should metro you or should urban centers. देखो, अप्रिशिएशन शुड, यू शुड, मतलब इन्फ्लेशन से +1-2% आप मान सकते हो। इफ इन्फ्लेशन इज 5%, Okay. अप्रिशिएशन कुड बी 6-7%। एंड अगेन हाउसिंग प्रॉपर्टी के Okay. देयर इज वन डिसएडवांटेज,
अगर आप अप्रिसिएशन तो होता है एज अ हाउसिंग, इफ यू सी अप्रिसिएशन इज देयर, बट व्हाट हैपेंस इज आफ्टर 10 15 20 years प्रॉपर्टी यू बाय टुडे बिकम्स ओल्ड, राइट? तो ओल्ड प्रॉपर्टीज और न्यू प्रॉपर्टीज का Yes. रेट देखोगे, अभी आर्बिट्राज और बढ़ते जा रहा है। अगर मैं अपनी एरिया की बात करूं, आई लेट मी टॉक अबाउट माय एरिया। आई लिव इन कैलकाटा। एक ये लोकेशन में लेट से 1 स्क्वायर फीट का प्राइस नए प्रॉपर्टी में अगर 20,000 रुपीज है पर स्क्वायर फीट, पुराने प्रॉपर्टी में इट्स लाइक 12,000 रुपीज। दिस इज द डिफरेंस ऑलरेडी योर। तो Mm-hmm. वो एक चीज भी होती है। Yes, yes. तो योर कैलकुलेशन के लिए अगर आप इसको एक फाइनेंशियल डिसीजन के हिसाब से देख रहे हैं कि ये मेरे को कितना रिटर्न जनरेट करके देगा, तो योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल अप्रिसिएशन शुड बी 4 to 5% पर Okay, ईयर। okay, okay. देव सर, नेक्स्ट Thank you. क्वेश्चन Let's मेरे move ख्याल to से उसको शॉर्ट में ही आप बता दीजिए कि टर्म term इंश्योरेंस and इंश्योरेंस endowment. लेना है तो टर्म इंश्योरेंस और एंडाउमेंट आप हाँ, क्या तो कहेंगे? इसमें भी मैं टर्म तो हमने डिस्कस कर लिया, टर्म हमने डिस्कस स्पेसिफिक कर टू द लिया। मैं एंडाउमेंट. एंडाउमेंट Yes. में ही मैं आता हूँ। तो एंडाउमेंट पॉलिसीज देखो, मैं अपने इसको मैं सही गलत, अब 7 8% की आपने बात की थी कि आजकल इंश्योरेंस कंपनीज दे क्लेम दैट दे आर गिविंग 7 8% रिटर्न ऑन दोज इंश्योरेंस पॉलिसीज। आई स्ट्रांगली डिसएग्री, बिकॉज वो कमिट कर रहे हैं, वो सिंपल रिटर्न के हिसाब से कमिट कर रहे हैं। आईआरआर, क्योंकि कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बीट म्यूचुअल फंड्स, बीट स्टॉक्स, या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमें आईआरआर कैलकुलेशन करना है। क्योंकि सी Hmm. अल्टीमेटली दे वुड इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आज 10 year गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड है 6.9%, राइट? 6.9% अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड है, उनको भी कमाना है, उनको अपना घर चलाना है। इंश्योरेंस कंपनीज का अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे, दे रन इनटू ह्यूज प्रॉफिट्स। उनको अपना घर चलाना है, सब कुछ करना है। इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देना है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ योर देयर एक्सपेंसेस, इनकम, सब कुछ। उसके बाद में दे कैनॉट गिव यू मोर देन 6% फॉर श्योर। तो इट तो विल बी लेस देन 6%। योर आईआरआर कैलकुलेशन में वो 6% नीचे आएगा, प्लस देयर इज प्रोटेक्शन का एक्सपेंसेस। तो आईआरआर कैलकुलेशन जितना मैं देखा हूँ, ऑन एवरेज इट इज एनीवेयर बिटवीन 5.5 to 6% आज के टाइम में। तो क्या हम So इसको इस way we समराइज can कर सकते हैं conclude कि it here. इंश्योरेंस के लिए Yes, टर्म summarize. इंश्योरेंस Hmm. और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट? राइट, राइट। Yes, yes, और yes. उससे ज्यादा Good one. रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दोनों चीज सेपरेट रहेगी तो इट इज फार मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। Yeah, Yes. yeah, Okay, okay. Dev, as a Third question as a was fi- of TER, total expense यस, ratio. यस। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो की आपने क्वेश्चन पूछी, विच इज वेरी रेलिवेंट। तो उसमें क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लान्स फॉर ईज ऑफ एवरीवन। आई मस्ट एक्सप्लेन कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लान विच इज इन म्यूचुअल फंड्स, विच इज डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद द म्यूचुअल फंड कंपनी। आप ग्रो, जीरोदा, ये सब से कहीं भी अकाउंट खोलते हैं तो दे इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान्स, because they are not they don't have a distribution model. They kind of invest your money directly through the direct plan route. तो उसमें आपका एक्सपेंस कम लगता है। इट इज लाइक एनीवेयर बिटवीन 0.75 to 1% लोअर। इफ आई टॉक अबाउट द एस्टेब्लिश फंड्स, इट इज एनीवेयर बिटवीन 0.75 to 1% लोअर देन अ रेगुलर प्लान, जो डायरेक्ट प्लान का कॉस्ट स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो आप डायरेक्ट में यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ। इफ यू थिंक यू आर DIY काइंड ऑफ अ पर्सन, कि एक तो आप खुद मैनेज कर सकते हो, यू कैन टेक दोज डिसीजन सही सही फंड्स में आप इन्वेस्ट करके, उसको सही से मैनेज करके, और सही आप मॉनिटर कर सकते हो और अपने गोल से भी अलाइन रख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट रिटर्न्स, राइट? इट्स ऑल्सो अबाउट अलाइनिंग विद गोल्स। क्योंकि आप अल्टीमेटली क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? फॉर अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल यू आर इन्वेस्टिंग फॉर दैट। तो सारे एक्सपर्टीज, टैक्सेशन और सारा नो हाउ अगर आपके पास है, एंड इफ यू थिंक यू आर फुल्ली वाइज, कि आप मार्केट के सेंटिमेंट देख के, नॉइज देख के आप डरोगे नहीं, यू विल नॉट बी ग्रीडी। ऑल दोस फैक्टर्स विच आई टॉक्ड अबाउट, इफ यू थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन, फील फ्री टू डू इट। और एक दो चीज है जो मैं कवर कर देता हूँ। अगर एक ट्रांसमिशन का भी प्रोसेस, बाकी ऑपरेशंस प्रोसेस तो होते ही है, नेम चेंज वेम, आजकल वो सारी चीजें तो ऑनलाइन हो जाती है। नेम चेंज हो गई, नेम चेंज के लिए फिर भी फिजिकल रिक्वायर्ड है। समवन इज अ फीमेल, शादी के बाद नेम चेंज करना है। मैंने खुद अपना नेम चेंज किया है वैसे, आई हैव चेंज माय फर्स्ट नेम। तो ये सारे प्रोसेस में मेरा माय नेम वाज पीयूष, नाउ नाउ आई हैव चेंज माय नेम टू देव। तो ये सारे प्रोसेस करना फिजिकल होता है। तो फिजिकल में आपको डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप रेगुलर प्लान में करते हो और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक के साथ तो फिर भी आपको फिजिकल, वो बैंक अपने ब्रांच में आपको बुला लेती है नॉर्मली, बट हमारे पास फिजिकली आपको जाना नहीं पड़ता। यू सेंड एवरीथिंग टू अस बाय पोस्ट एंड वी सबमिट ऑन योर बिहाफ। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसमिशन। आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स अगर एक जगह एक एडवाइजर के पास में है, तो ट्रांसमिशन बिकम बहुत वेरी इजी है। ट्रांसमिशन का मतलब डेथ होने के बाद नॉमिनी को पैसा ट्रांसफर करवाना।
तो ये कहीं भी प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होती है. इफ आई हैव टू टेल यू, इट इज एब्सोल्युटली फिजिकल. हर कंपनी में डेट सर्टिफिकेट, अगर आप ये सोचते हो कि आपने ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो आपको डीमैट में अगर है तब तो फिर आपका डीमैट के थ्रू आपको यू हैव टू ट्रांसमिट दीज थिंग्स. बट ऑल दीज थिंग्स अगर आपने डायरेक्टली वैसे म्यूचुअल फंड में किया है तो एवरी फॉर्म इन एवरी म्यूचुअल फंड कंपनी हैज टू रिसीव योर ट्रांसमिशन फॉर्म along with the death certificate and all other documents for this thing to be transferred to the nominee, which is again a complicated process. आप ये बहुत सारे मतलब सॉफ्ट बेनिफिट्स मैं इनको बोलूंगा जो अगर आप रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आते हो तो आपको मिलता है. एंड ऑब्वियसली वी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो वी ट्रैक फंड्स एंड ट्राई टू गिव यू विद द बेस्ट. मैं ये नहीं बोलता हूँ रैंक 1 फंड आपको हमारे से मिलेगा, बट कोशिश हमारा यही रहता है कि वी ऑलवेज बी आवर फंड्स ऑलवेज बी इन द टॉप क्वार्टाइल. टॉप क्वार्टाइल का मतलब अगर एक कैटेगरी में लेट्स से लार्ज कैप फंड्स में 40 फंड है तो हमारा फंड टॉप 10 में होना चाहिए, ये हमारा गोल है. तो आपको वो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है. एटलीस्ट यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड कि आप बाई चांस खुद से मैनेज करके आपने सही गलत डिसीजन ले लिया. यू डोंट हैव टू सी कि आपने मतलब ऐसे फंड में आप फंस गए जहाँ पे रिटर्न्स कुछ बन नहीं रहे. वो एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है. दिस इज देव द दिनेश की बोल रहा डिफरेंस. हूँ मैं, Thank you. वाइस प्रेसिडेंट विबिवा जयपुर से. थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा. पहले उसी स्टेटमेंट को मैं क्लियर करवाना चाहूंगा आपके माध्यम से जो डॉक्टर बंशी ने रखा. क्या मेडिकल रिम्बर्समेंट परक्यूजिट के रूप में टैक्सेबल है? एज फार एज आई अंडरस्टैंड, the reimbursement on the basis of undertaking up to 15,000 is not taxable, and more than that is taxable. But the actual bill-based reimbursement, I don't think it is taxable. So I would like from you whether is it so or not. Secondly, अगेन मतलब मैंने भी पहली बार ही सुना है आज कि ये टैक्सेबल होता है, तो आई ऑल्सो नीड टू चेक एंड गेट बैक. मैं आई विल चेक विद एंड यू पीपल ऑल्सो कैन चेक विद द बैंक, क्योंकि बैंक के पास भी आपका भी अपना टैक्स टीम होगा, क्योंकि दिस इज अ Yes, प्योर. particularly this is a CA genre, if I am not mistaken. हाँ वहां हाँ से हाँ जो taxation का part take care हाँ करते हैं, they will be in a better position to help us out. हाँ. आई विल ट्राई टू हेल्प, दो आई विल ट्राई टू हेल्प, क्योंकि हमारे भी कांटेक्ट में Yes, चार्ट अकाउंटेंट्स है, मतलब बिकॉज वी yes, yes. आल्सो फेस लॉट ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस. तो हमारे वी आल्सो हैव 3 to 4 टैक्स पीपल दैट वी आर वर्किंग विद. तो उसके बेसिस में आई विल आल्सो गेट बैक एंड thank तो you. सी. बट दूसरा दो प्रश्न चार हमारा दिन ये में है, इसको क्लैरिफाई करके हम अपने ग्रुप में शेयर कर Yes, देंगे. दूसरा yes. प्रश्न हमारा ये And है कि हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, जैसे मैं अपनी कंपनियों से, जो कंपनियां हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उनसे चर्चा करता रहता हूँ और अपने विजुअली इम्पेयर्ड को दिलवाने की कोशिश करता हूँ. एक लेडी का उन्होंने ब्लाइंडनेस की वजह से रिजेक्ट नहीं किया. उन्होंने कहा हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि इनका जो ब्लाइंडनेस का कारण है वो सीरियस नेचर का है जिस वजह से ब्लाइंड हुए हैं. क्या ऐसी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है? जब ब्लाइंड हो गया, 100% ब्लाइंड हो गया आज के 30 साल 35 साल पहले, और जिस रीजन से हुआ था उस रीजन को लेकर के डिनाई किया जाए, ऐसी चीज़ों को चैलेंज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है? कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो आईआरडी का, आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो, वो कोई उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं. बट गेटिंग अ रेजोल्यूशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एक रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, अब इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है. एंड आप फाइट कर सकते हो एंड यू माइट एंड अप सर ऑन द एक चीज राइट साइड पूछना, ऑल्सो. मैं अगर बोलूँ तो जैसे हमें यहाँ समझना भी तो पड़ेगा कि सीरियस रीजन क्या था. अगर मान लीजिए हाँ कोई हाँ हाई डायबिटीज की वजह से ब्लाइंड हो रहा है हाँ 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 करेक्ट. तो डेफिनेटली वहां पे फिर वो yes, yes. कंसीडर हाँ होगा हेल्थ फिर वो इंश्योरेंस में. रीजन ऑफ रिजेक्शन डायबिटीज हो जाएगी. तो फिर वो देखना पड़ेगा ना कि रीजन राइट उन्होंने जो राइट बोला है राइट. तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बट अगर आपको ब्लाइंडनेस भी लगता डायबिटीज का केस है, लेवल होती है. अगर उस सर्टेन स्टेज तक ले जाए जहां पे ब्लाइंडनेस कॉज करे तो दैट मींस इट इज वेरी क्रिटिकल वन. क्रिटिकल, सो यस. दे राइट आर राइट. ऑफ कोर्स जनरली बट दे डू बट डिनाई अगेन वही इवन अगेन इन. अगेन मैं बोलूंगा केस टू केस. हम अगर आपके पास में ऐसा कोई केस आता है वो हमें रेफर कर सकते हैं. केस टू हाँ केस हम फाइट करके कोशिश करेंगे कि करवा पाए हम ऑन अ बेस्ट एफर्ट बेसिस. So let us Yeah, give some opportunity Okay, to our thank you. yeah, participants. Dev Rakeja, before we go to the audience, Friends, one general but now question. I would request that it is 12:35. We should open it for the participants also, and let us summarize the session in next 15-20 minutes. हाँ, यस. May I request all? Parvez ji, please. Jyoti, please Yes, unmute. yes, You yes, can now you can unmute the yes, yes. participants and we so that we First, can take I would questions from request them. that those questions which were posed in chat messages, if somebody can recap it
And in brief, if it is already answered, then please avoid, and if it is unanswered, then please focus on that, Mr. Akheja. Yes, now all the participants can unmute and put your questions. Am I audible, sir? With your name and You are bank audible. name, Please tell friends. your name. Okay, my name is Yep. Ashutosh Singhal. I want to ask, I have retinitis pigmentosa. As you know, only one RP E65 has treatment, which is around 3 crore, or maybe more than 3 crores. Like whenever treatment will come or cure will come. So if I will uh, do health insurance, will it able to cover because I have already RP? Yes. So I myself have RP E65 only, same. So I've got my health insurance done. So it is pretty much doable. Means you can do a treatment of E65. Oh, you're talking about treatment for या E65. ये पूछ रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट हाँ, आता मैं है समझ तो गया वो क्वेश्चन, कवर मैं होगा समझ गया, कि सॉरी नहीं जी सॉरी। तो वो जी उस केस में अगेन मेरे पॉलिसी में देयर इज नो परमानेंट एक्सक्लूजन मेंशन। अगर आपके पॉलिसी में परमानेंट एक्सक्लूजन मेंशन्ड है तो योर एनी आई ट्रीटमेंट इज नॉट कवर्ड, बीट आरपी, बीट एनी ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द आई इज नॉट कवर्ड। अगर परमानेंट एक्सक्लूजन नहीं है, जैसे मेरे पॉलिसी में नहीं है, तो वो कवर हो सकता है। बट आई सी व्हेन आई डू पॉलिसी फॉर क्लाइंट्स, तो मैं आई का उनको बोलता हूँ कि आप ये ट्रीटमेंट को आप ये मान के चलो कि नहीं मिलेगा। मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि परमानेंट एक्सक्लूजन अगर आपकी पॉलिसी में नहीं है तो वी कैन डेफिनेटली फाइट फॉर इट, बट वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, क्योंकि क्या है कि ये क्रॉनिक चीज है जो पहले से है। तो इसका ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इट हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट। और इस बेसिस में मैं इंश्योरेंस कंपनी से पूछूंगा, वो बताएगा भी नहीं कि ये मैं ऐसा कुछ आता है तो आप ट्रीट करोगे कि नहीं, because यस they can only answer when it comes and you file a claim, then only they are in a position to settle it or deny it। अब अभी वो कुछ कोई भी स्टेटमेंट वो उनको उनके लिए देना भी परमिसिबल नहीं है। Could you matter it Okay, is thank you. Next hypothetical question, for I this think we question can move ahead. yes could you please tell me more about permanent exclusion? What is the meaning of permanent exclusion? परमानेंट एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि Friends, one person, one question, please. Yeah. हाँ, क्विकली मैं फिर भी इनकी परमानेंट एक्सक्लूजन एक लाइन में बता देता हूँ। हाँ परमानेंट हाँ एक्सक्लूजन मींस अगर आपके पॉलिसी में कोई भी चीज ऐसा है, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि वो चीज कवर्ड नहीं है, राइट? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन सब समझते हैं। तो एक्सक्लूजन परमानेंट है, मतलब कभी भी लाइफ टाइम। एक तो टेम्पररी एक्सक्लूजन होता है 2 साल 3 साल का, कि आफ्टर 2 or 3 years आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी दैट विल बिकम ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द कवरेज। बट परमानेंट एक्सक्लूजन क्या होता है? इट विल नेवर बी कवर्ड। It अगर is not एक स्टार मार्क डाल के आपके पॉलिसी में अगर इट्स मेंशन दैट आई ट्रीटमेंट इज परमानेंटली एक्सक्लूडेड, दैट मींस फॉर एनी आई ट्रीटमेंट you will not get any claim in the lifetime of the policy. okay, thank you Um, next yeah Good Yes, afternoon, next sir. viewer, Dev name sir. please. Good afternoon, Dev sir. This is Kapil. Good afternoon. what is Sir, question I have 2-3 questions. You can ask One, one question because we want others also to, because due to lack of time ask we your need, most you can important okay, question देखो most इसमें क्या है ना, important question आप क्वेश्चंस, दिस इज फॉर एवरीवन, क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो बाद में भी आप मेरे को, so मैं how do अपना we contact you, sir? ईमेल Maybe you आईडी और can फोन नंबर, जी यस share कर आई देंगे शेयर तो माय ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। तो आप मेरे को क्वेश्चंस अपने ईमेल भी चाहो तो कर सकते हो या व्हाट्सएप में डाल सकते हो, जिसमें क्या fine, sir. होगा कि आई कैन आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली। अगर मतलब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, वो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म में आप मत पूछो, बिकॉज देन अदर्स आर आल्सो वेटिंग एंड योर क्वेश्चन Sir, शुड बी two रेलेवेंट फॉर generic एवरीवन। questions. यस, Generic questions. And Once you another said that thing, we should, friends, since this session has been so informative, we have actually many people have been messaging me that they are unable to join because capacity is full. So very soon we can have that another session of Mr. Rakheza. This is very beneficial for our yes, sir. like community. So please go ahead with your one question, Kapil ji the yes most please go important ahead one. yeah Kapil ji, yes Okay. So the question is that as a bank employee under the new pension scheme, once we invest, I want to know ki how should we manage our funds, because मतलब if we are in 40s, where should we invest? Like कौन सी तरफ जाना NPS चाहिए? Equity में कितना? And market is volatile, so we don't have much knowledge. So in this case, how should we go about it? सी, NPS अगर आप allocation आपने आपने मेंशन किया इफ यू डोंट हैव नॉलेज, राइट, व्हिच बिकम्स वेरी Right. इंपॉर्टेंट इन योर क्वेश्चन, तो उस केस में यू शुड, इफ यू आर रिटायर, यू आर सी, एनपीएस ऑटोमेटिकली बिकम्स अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट, राइट? इट्स अ नेशनल पेंशन स्कीम, सो रिटायरमेंट के Yes. बाद की पेंशन की प्लानिंग है। तो
दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स लॉन्ग टर्म, लाइक आपके पास 10-15 साल है, तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करो एटलीस्ट। अगर आप थोड़ा सा आप सोचते हो कि नहीं, आई वांट टू हैव लोअर वॉलिटिलिटी, हैव एटलीस्ट 50% इक्विटी एक्सपोजर। इफ नॉट, इफ यू थिंक कि आप विदाउट वरिंग अबाउट, मतलब आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट मतलब साल में एक बार अपना स्टेटमेंट देखो, एंड मार्केट कहीं भी हो, यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट, एंड तब आप उस केस में यू मैक्सिमाइज योर इक्विटी एक्सपोजर। मैं अपना अपना एसेट एलोकेशन करता है इन एनपीएस। अगर मैं आपके उसमें होता, आपके सीट में मैं होता, In तो 40 आई वुड हैव इन्वेस्टेड, आई वुड हैव मैक्सिमाइज्ड माय इक्विटी एक्सपोजर। Fine, sir. Okay, good. Sir, last question, just one. कितनी emergency fund होना चाहिए, sir, approximately? If we are in ऑलरेडी आंसर 40. आ चुका है, 4 times of your Four salary. times Next, of your please. monthly Okay, income. I missed it. I missed it. Thank you, No sir. problem, no Thank you. problem, no problem. Next. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you're very Go Yes, ahead. much. Yeah, yes. please go ahead. Yes, I'm Sindhu working for Punjab National Bank. First of all, thank you so much, Vibhiva, for organizing such a wonderful session. And heartiest congratulations, Dev. It has been a pleasant experience to hear you. I'll pose my 2 or 3 questions. Please answer only if it is required here. Otherwise, I can reach out to you in person. So my first question is mutual funds versus ETF. I'm really confused between these two. I'm already investing in mutual funds. My categorization is large and mid cap, small cap, multi cap, and flexi cap. I'm getting confused whether or not to choose sectoral allocation or not. So these days I'm more listening about ETF. So which is the best way to invest? Is it mutual fund or ETF? My second question is regarding real estate. When it comes to real estate, I'm already owning a house, but as you've rightly mentioned, the returns when calculated are plus 1 or 2% from inflation, including inflation. So which is not really satisfying. So now, if I want to diversify or if I want to reallocate my asset allocation, so is it the right choice? I mean, what do you feel is the right choice? Is it investing in REITs or directly into investing in a house for a rental purpose? So these two are my questions, and rest, thank you so much, all the panelists. You've almost covered all Thank my you, points. Sindhu. I would like to add another very important aspect of this question, which I wanted earlier, but since Sindhu has raised this, Deo, please also consider the fact of rent income in that investment of property, like real estate in how that Sure. grows, and how Sure. can we consider, because that is, of course, as you said, emotional investment as well as very concrete one in front of us every time it is reliable one. So please focus on that also. Thank you. पहला क्वेश्चन पहले मैं आंसर करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ. So it's a very important question again, which is relevant for everyone. So see, mutual funds for me, like a market in India, there is potential where a mutual fund can deliver excess return over the benchmark. ETF normally is the benchmark. अगर निफ्टी ETF की बात करें और बैंक निफ्टी और whatever ETF we are talking about, वो benchmark है. So mutual funds have a potential to beat the benchmark. Again, if you go through the data, a lot of funds are not able to beat the benchmark. Some funds are able to, but if you are in the right fund, mutual funds, ETF is not something which is essential. मतलब आप कर सकते हो थोड़ा सा allocation ETF में, definitely I'm not denying that, but अगर आप नहीं भी कर रहे हो, it is not something that which it's just a noise which people are talking about. It's nothing कि आपको करना ही है. अगर आप normal mutual funds में हो, if your returns are satisfactory, if they're beating the benchmark, you can stay with them. If you think कि नहीं, your funds are consistently downplaying the market and not beating the benchmark, और आपको लगता है आपको खुद ही करना है, तो आप ETF में इन्वेस्ट करें. Secondly, regarding sectoral funds, again it depends on your if you have that specialization, or if you are working with advisor, और आपको कोई recommendation पे आप जा रहे हो, तो आप कर सकते हो. अदरवाइज इट्स नॉट, अगेन डोंट जस्ट, मतलब वो फोमो में जो डोंट गो इन अ फोमो state and just invest कि I'm missing out on something. Even most of my clients who are focused on long term planning and don't have that much knowledge, मैं उनके पोर्टफोलियो में, मैं मेरे होने के बावजूद मैं उनके पोर्टफोलियो में I don't have sectoral funds. So it's not that it's very important. Your portfolio mix is good. You have a healthy mix of let's say large cap, mid cap, small cap, multi cap, flexi cap. इसमें ही आप अगर मैनेज करो पोर्टफोलियो अच्छे से, तो सी सेक्टरल फंड्स कैन जनरेट गुड रिटर्न्स, बट इट बिकम्स रिस्की ऑल्सो. देयर इज नो पॉइंट इन, मतलब पॉइंट तभी है जब आपको लगता है बहुत ज्यादा आप पे आपका या तो एक्सपर्टीज है
नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है उतना एडिशनल रिस्क लेके जस्ट टू जनरेट सम एडिशनल रिटर्न. सेकंड क्वेश्चन, कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, रेंटल वाला इनकम के लिए आई वुड सजेस्ट कि सी रेंट वर्सेस एक तो ये है कि आपने बोला रेंट अगर हम प्रॉपर्टी बाय करके ले या वर्सेस रीट में करें. रीट भी है, इनविट भी है. अगर आपको इनविट पता है, इनविट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वेयर यू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वहां पे आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम एवरी ईयर आता है. तो दीज आर द टू एवेन्यूज, रीट्स एंड इनविट्स, जहाँ पे आप काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप खुद से कर रहे हो तो क्या है, नॉर्मली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में नॉर्मली पीपल इन्वेस्ट रेसिडेंशियल में आपका रेंटल इनकम इज लोअर. आई वुड सजेस्ट, अगर SMREIT करके एक नया कॉन्सेप्ट है, स्मॉल एंड मीडियम REITs, वेयर दे वुड इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, कमर्शियल रियल एस्टेट, वेयर यू गेट अबाउट 7 to 8% काइंड ऑफ रेंटल यील्ड. और रेंटल एस्केलेशन भी होता है, एवरी ईयर 4-5% रेंटल बढ़ेगा. With some, let's say, even a 5-6% capital appreciation, you get that 12-13% kind of a return. So you can invest, but obviously that needs a minimum commitment. It could be 10 lakhs, it could be whatever the number is. So if you're looking into invest that much, तो आप एक SMREIT में जाओ. आप again it again depends, अगर आप में specialization, or otherwise you can consult an advisor to help you pick a SMREIT. और नहीं तो फिर if you want to invest a lower amount, then you can simply invest in REITs and InvITs which are listed in the market, where you can invest like 1 lakh, 2 lakh rupees also. So SMREIT, is it starting is we have to invest 10 lakhs? Is it what you're trying to say? Yes. Okay. And second, considering our condition, visually impaired, being dependency and all, I think investing in REITs would be the best option. Be it REITs or be it SMIT, whatever you've mentioned. Yes, correct. हमारे लिए वो ज़्यादा easier है, because see, for me also, I always prefer financial assets like rather than physical assets, because physical assets, maintenance or everything comes to you, right? I don't want to take hassle of all those things. यहाँ पे आप REITs या इसमें SM REITs में इन्वेस्ट करते हो, तो there are people who are paid, मतलब ऐसा नहीं है फ्री में नहीं है कुछ मिल रहा है, but who are paid 1% साल का उनको जाता है to manage your asset. तो बहुत अच्छे से वो मैनेज हो जाता है. Thank you, Dev. Next participant. Thank you. Yeah. There is a question from Samrit Verma. Digital gold or gold mutual fund, which is best for investment? See, digital gold is good, but again, it comes, मतलब ये क्या है, again यही वो पॉइंट वापस आ जाता है. म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप जाते हो, इट्स फार मोर सिक्योर एंड रेगुलेटेड बाय सेबी. तो सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट में मैं प्रेफर ज्यादा करूंगा, भले ही if I have to pay 0.5% let's say per year extra for let's say gold mutual fund, I would still prefer a gold mutual fund because it is SEBI regulated rather than going for a digital gold and एक नए चीज में which is not that regulated especially. Kindly mute. All participants are requested to mute I think, yourself unless you are yes, posing I any would also question. request Yes. everyone to mute, and we can take, I think, 1 or 2 questions more, and then we can Now after that, because you have Next been participant, speaking for please. last 2 years, Yes. so we will take two more questions. Sure. Only 2. Yes, Sure. yes. Name your name, please. Your name? सर मोहम्मद बोल रहा हूँ अंबरनाथ से. मोहम्मद जी अपना क्वेश्चन पूछिए और शॉर्ट रखिएगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाँ सर, ये क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को भी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है क्या? बिल्कुल दिया जाता है. आप डेफिनेटली, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने इन्फॉर्मेशन काफ़ी शेयर भी किया है इसके बारे में कि हेल्थ, और ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में डिफरेंस नहीं है. और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टर्म इंश्योरेंस मिलने में और ईजियर होती है, बिकॉज देयर जॉब इज स्टेबल इनकम, चांसेस बढ़ती है. तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं. बस Last इतना आंसर question, काफी please. है. थैंक यू. सर मैं पूछ रहा हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग भी हमको With your name, please. With your नाम name, बता please. दीजिए, नाम बता दीजिए. नाम बोलिए आपका. रविंद्र. हाँ, हाँ बोलिए, रविंद्र जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए. मिलेगा. हम अपलोड करेंगे उस पे, पोर्टल पे अपलोड करेंगे, वी आके हम शेयर करेंगे लिंक. And चलो, we will परवेज also देव share जी का contact thanks करो, details of फिर अपन end Rakheja करते हैं. Finsap and Mr. Dev Rakheja also. Yes, anybody else? Sir, am I audible? Last one. हाँ, लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके, Am I ऑडिबल audible, sir? बोलिए, आप नाम बोलिए, ऑडिबल है. बोलिए हाँ, ऑडिबल है. सर नमस्ते सर, मैं नारायण बात कर रहा हूँ. तो Yes, नमस्ते. मेरा सवाल ये है, नमस्ते सर. तो मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली हम जो म्यूचुअल फंड में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं,
तो उसमें जो है रिस्क फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसमें हमें मतलब बैलेंस कैसे रखना चाहिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं? उसके बारे में बहुत सारे लोगों को, या इवन दो मैं बहुत साल से इंफॉर्मेशन अर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्लियर हो मतलब वो थोड़े समझ में दिक्कत आती है या उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। तो वो रिस्क फैक्टर हम कैसे मैनेज करें या कर सकते हैं? रिस्क रिस्क एक क्योंकि थोड़ा वास्ट वास्ट सब्जेक्ट है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, वाइटल है डिसीजन मेकिंग के लिए। पर इसमें क्या है ना, यू ऑब्वियसली रिस्क, अब बहुत तरह के फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, राइट? व्हेन सिलेक्टिंग म्यूचुअल yes, फंड्स इन इन मल्टी कैप, एक मैं सिंपल बात करता हूँ मल्टी कैप कैटेगरी की। तो बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। सम टेक वेरी हाई रिस्क, सम टेक लो रिस्क। रिस्क आपको कहाँ से पता चलता है? कोई फंड आपको ऐसे ऐसे अगर देखे तो क्या परफॉर्मेंस देख के रिस्क का कोई अंदाजा नहीं होता, राइट? बिकॉज रिस्क yes, लेके वो रिटर्न हाई जनरेट कर रहे हैं, हम बस रिटर्न देख के अगर इन्वेस्ट करें तो वी आर नॉट सीइंग रिस्क। रिस्क रिस्क, एलिमेंट हाँ, देखने के लिए वी हैव टू लुक एट बीटा। हर ओ, म्यूचुअल फंड का बीटा अवेलेबल है। बीटा का सिंपल मैं लैंग्वेज बोलूं कि पर यूनिट रिस्क, per unit movement in the market, how much risk the fund is taking. Let's say market is going up, Nifty is going up by, or let's say Nifty 500 is going up by 1%, या गोइंग डाउन बाय 1%। वो कितना फंड कितना गिर रहा है? अगर अगर फंड निफ्टी 500 लेट से 1% गिर रहा है, तो अगर वो हमारा फंड 1.5% गिर रहा है, तो हमारे फंड का बीटा हो गया 1.5। So if it's ओके, 1 or less than 1, we can ओके, it is very good. If it's ओके, more हाँ, than 1, then it becomes a risky fund, राइट? अब आपको देखना है कि आपको रिस्की फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगेन अगर वो बीटा, अब वही कैलकुलेशन करना है। अगर बीटा बीटा 1.1 1.2 है एंड फंड इज एबल टू, अगर फंड इज एबल टू बीट द बेंचमार्क बाय 5 6 7%, तो बहुत अच्छा फंड है, बिकॉज इट्स टेकिंग सम रिस्क कंपेयर टू द मार्केट बट डिलीवरिंग लॉट ऑफ एडिशनल रिटर्न फॉर यू। सो वो हमें देखना है कितना रिस्क बेसिकली। द इफ आई पुट इट इन बोथ द थिंग्स इन वन हाँ, पर्टिकुलर मतलब 3 4 वर्ड्स, कि हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है। आई थिंक दोनों को साथ में देखना है। हाँ देव तो सर, आई थिंक again, दिस इज, आई थिंक आपने अच्छे से दे दिया इसका आंसर, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही टेक्निकल और वास्ट सब्जेक्ट है। इसको पूरी तरह से यहाँ टेक्निकल, हाँ, एक और सेशन में दूसरा यहाँ क्या बैठ है के कि करेक्ट समझाना करेक्ट, पॉसिबल नहीं है। और नहीं, दूसरा आई ऐसा है वांट कि टू इसके जस्ट ऊपर वी नो कैन कि डू अ इन सेपरेट शॉर्ट सेशन ऑन दिस। इंफॉर्मेशन। हाँ, राइट, राइट सर, राइट सर। Sir, one my request. My name is Sivaram Krishna in Andhra Pradesh. हाँ, यस, Sir, please advise any public sector banks, and please mention to me accidental insurance and health insurance and term insurance. Please tell See, me. कंपनीज का, आई एम नॉट यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। सी, इट्स नॉट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ। आई डोंट वांट टू बी ऑब्जर्व्ड एज दैट, क्योंकि इसलिए मैंने कंपनीज की यहाँ पे नाम नहीं ली। इफ यू वांट यू कैन रीच आउट टू मी इन पर्सन एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन क्विकली। यस, आई विल गिव माय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इन दिस प्लेटफॉर्म आल्सो, कि और बाद में Okay, आप शेयर भी कर सकते हो। माय मोबाइल okay, नंबर इज okay. 97। हम बाद में सर, बाद में शेयर कर देंगे, डोंट अच्छा, वरी सर, बाद ओके, आपका में share कर मैं दो। ले लूंगा। In text, it's ठीक है, better that it is हाँ, shared क्योंकि here in इट the विल बी text डिफिकल्ट टू itself. रिमेम्बर। सो देव Please. सर, आई Chat. विल टेक योर, you have, I have your number and I will take your email ID as well, and I will Okay, share your contact detail in the groups so that okay. people can reach out to you directly with your with their specific issues. श्योर। Yeah. So totally don't worry. One or two companies advice karo. Example, a star health insurance. I like to PWD की don't करने का reject करने का companies का नाम बताओ साहब। नहीं, ये नहीं एड्रेस कर सकते क्वेश्चन सर, आपको बोला ना, Okay. ये प्लेटफॉर्म पे This हम इस is चीज को नहीं public. ले This सकते। is दिस इज You our please have a स्पेसिफिक। personal purpose is chat with purpose them. is Take their another आप Okay, advice. पर्सनल ठीक चैट से है, पूछ ठीक है, लीजिएगा, ठीक है, पर्सनल ठीक है, चैट पे। ठीक है, Yes, yes, yes. ठीक है, Big. ठीक है। Okay, हाँ। okay. ओके, थैंक यू So सो मच। we can wind it up. Parvez ji, if you can. Yeah, Parvez ji, हाँ, wind it up now. यस, ज्योति, आर यू देयर? Yes, yes. Now I would like to request our treasurer Jyoti madam, who has also been taking care of technical aspect of this session. I request her to please deliver a note of thanks to Mr. Dev Rakecha for his wonderful session. I thank each and every participant here for taking your time and attending this session. And I especially thank Dev Rakija sir for taking his valuable time and throwing light on many things to invest our amount in proper ways
in the very first month of this financial year. This will definitely help all of us to go in a right way, sir. Thank you so much for taking your valuable time. And I thank our General Secretary, Vice President, sir, and Joint Secretary Parvez, sir, for taking this wonderful initiation. Special thanks to each and every participant. And thanks to you for managing all the Yes, technical part definitely, of this definitely. session. Yeah. All the best. All the best. Yeah. Thank you very much, everyone. Okay, sir. Thank you, Thank thank you you, all. thank you, very Dev much. sir. We Thank you Thank all you at the so the much. end of Thank you this so much, session, participants. everyone, for Very joining. much. best It was of wonderful. luck to all of you for managing your financial assets Thank you, from the guys. Thank Viva you so side. much. We will Thank you. try to organize such things again and again for And the we will benefit Yes, of yes. share our mobile number community. and email of Mr. Dev Yes, yes. Rakesh Thank you. and the Thank you. shares group so that people can reach out to them. Yeah. Very Thank you, soon guys. we Thank will you so be much. sharing edited video of this particular session on our YouTube channel. Request all of you to circulate it and make other also get benefited from this endeavor. हेलो सर Thank you to all. Bye Yes, bye. yes. Bye Thank bye. you so Thank much. you. सर मैं Thank you. विवा का Thank भी you, sir. नंबर Bye bye. नहीं बना पाया हूँ तो कैसे बन सकता हूँ कभी टीम Please मैंने ज्वाइन किया कॉल कर send me लीजिए one आप हमें message से to किसी को any कॉल of और us. नाम बताइए और नंबर बताइए We आपको will बना send देंगे you the process. हेलो सर हाँ सर We will चंदन send बात you कर रहा the हूँ सर process. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Sir, bye bye, sir. Bye bye. Bye bye. Bye 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 to bye. all. Whosoever wants, then please in any